Okay, guys. Hi, guys. Welcome to the stream. So this is going to be हमारा Python programming का basics की online workshop होगी और ये हमारी very first live stream है on the YouTube channel, Multronica Solutions के YouTube channel पे. And of course, in this workshop we will cover Python के basics, बिल्कुल fundamentals हम cover करेंगे. So if you are someone जिसके बिल्कुल भी कोई coding experience नहीं है, ये workshop would be perfect for you. और इसके साथ मतलब मैं वुड लाइक टू एम्फसाइज कि हम लाइव कोडिंग सेशन भी करेंगे. सो वाइल आई एक्सप्लेन जो कॉन्सेप्ट्स जो होंगे हम कवर करेंगे, उनके साथ साथ मैं आपको कोड लाइव कोड करके दिखाऊंगी और कोड को रन करके दिखाऊंगी कि क्या आउटपुट्स आते हैं. और इसी तरह से मैं एक्सप्लेन करती जाऊँगी लाइन बाय लाइन के हाउ इज़ दिस पाइथन कोड वर्किंग. सो वी विल कवर लॉट ऑफ स्टफ इन दिस पर्टिकुलर वर्कशॉप, फ्रॉम वेरिएबल्स टू लूप्स, मतलब वाइल लूप हो गया, फॉर लूप हो गया. इन फॉर इंस्टेंस जो डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं यूज़ होते हैं पाइथन में, वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उनको मैनिपुलेट किस तरह करते हैं. एंड फाइनली वी हैव सम एग्जांपल्स. पाइथन के छोटे से एग्जांपल्स होंगे, सिंपल ऐप्स हम बनाएंगे रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, बिकॉज ऑफ कोर्स हम काफ़ी टाइम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे भी स्पेंड करेंगे इनको एक्सप्लेन करने के लिए. सो दैट विल बी द बेसिकली बेसिक एजेंडा होगा हमारे पाइथन के स्ट्रीम का. तो once again I'm just going to confirm for everyone कि I hope you guys can hear me and I hope everything is मतलब loud and clear, आपको सबकी आवाज़ आ रही है. Also if at any point अगर कोई सवालात हैं, कोई questions हैं, feel free to type in the live chat. जो live chat हमारे पास box होता है. And तो I won't answer most questions, मैं नहीं answer करूँगी during the stream, but I will try to put मतलब कि towards the end of the stream I'll try to answer all the most of them. ठीक है, तो ये हमारा plan होगा. Okay, one moment I'll be back. मैं screen को थोड़ा सा change करना चाह रही हूँ. Sorry about that, guys. I think screen properly नज़र नहीं आ रहा था, so that's why I had to change a few things. But right now, मतलब I think it's fine. Okay. So I hope you can see the entire screen. आपको पूरा PowerPoint नज़र आ रही होगी. As I said, yes, this workshop we will cover Python के basics. Python के basics में, for instance, we'll actually do live coding sessions as well. But before we start at the actual workshop, थोड़ा सा मैं आपको brief description दे दूँ about our company कि हमारी company क्या करती है. So firstly, जो आप live stream आप YouTube channel जिस पे देख रहे हैं, उसका नाम है Multronica Solutions, हमारी company का नाम है. And we are a company situated in Multan, South Punjab. और हमारा aim जो है, हमारी company का जो काम है वो ये है कि we provide skill development courses. वो skill development courses होते हैं मतलब in the area of technology and also soft skills. तो टेक्नोलॉजी की ख़ास जो होती हैं, ख़ास टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज़ पे हम फोकस करते हैं, जिनको कहते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़. मतलब कि आने वाले दौर में इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा. एज इन फॉर इंस्टेंस लाइक रोबोटिक्स, लाइक 3D प्रिंटिंग, कंप्यूटर विजन, AI, मशीन लर्निंग वगैरह. So right now, of course, our focus, our main जो हमारे focus है right now are robotics and 3D printing. Those are our star courses. But we have other courses available as well. इस तरह के, of course, computer vision, as I mentioned, mobile app development, Python, Arduino, and electronic courses. So if you are an adult, you can actually enroll in these courses. और अगर आप ज़्यादा information जानना चाहेंगे about these courses, then of course you can always visit our website, जो कि हमारी description box में है. You can also visit our Facebook pages, और of course आप हमें directly contact भी कर सकते हैं via WhatsApp अगर आप और ज़्यादा information जानना चाहते हैं.
So yes, so this is one of the many live sessions जो हम करेंगे future में. We have many more in the pipeline related to programming, related to Python, related to machine learning, and of course robotics. So ये सारी चीज़ें so if you subscribe and of course you stay tuned to our channel, so you will be able to check those out and of course participate in those workshops. So once again, yeah, we have a lot more things planned for the future. आने वाले साल में बहुत सारी और workshops होंगी, live workshops होंगी. So right now, of course, today we are focusing on Python. We are focusing on the very, very basics of Python. So yeah, so I'll get to that बाद में वापस मैं इसके बारे में बात करूँगी. Right now, I want to mention, of course, this is our institute. We are situated in Multan. So you are most welcome to visit us. If you're someone who is living in Multan, yeah, you get to visit Multan. Feel free to come to our institute. You can see क्या courses हम offer कर रहे हैं. Of course, you can see our classrooms. You can see our entire setup. Yeah. So of course, so that's about it for about हमारे बारे में. But before I start the workshop, let me just rephrase one thing. Let me just mention one thing. Of course, हमारा जो motto है हमारी company का वो है mastering tomorrow's technologies today. So as in हमारा जो aim ये है कि जो आने वाली दौर की technologies है, मतलब जो emerging technologies आएंगी future में, उनकी हम लोगों को इनको empower करें कि वो अब उनको master कर लें, like in this present era. क्यों? Because of course in the future emerging technologies हमारे will be required. Emerging technology skills will be required for the workforce. So of course you need to stay up to date. You need to be able to form part, to integrate well into the workforce of tomorrow and the future. आपको ये technologies के बारे में knowledge होना बहुत लाजम है. That's our aim. That's our vision. We want to empower the new generation, people like you, to learn all these important technologies. And of course, Python is one of them. It's a programming language, लेकिन it enables you to implement other जो technologies हैं, जिस तरह से computer vision है, जिस तरह से machine learning है, जिस तरह से web development है. All of these things, all the important stuff happens because of Python. So जो आप अभी सीख रहे हैं, that is an important skill to have, and that is of course going to help you a lot in your future. Alright, so let's move on. Let's talk about Python or its popularity. Python, of course, I'm sure we have some idea कि Python क्या है, and of course it's a very, very popular programming language. It's one of the most widely used programming languages out there, and because it's a very easy language to learn, it's very beginner friendly. इसके भी वो बहुत widely used, बहुत ज़्यादा popular भी है. Now companies such as Google, IBM, Netflix and Facebook already use करते हैं Python को, and they use them for various applications of course होती हैं. of course website बनाने में उनकी जो भी services provide करते हैं, they use Python to build those applications जो उनकी ज़रूरत होती है. machine learning में इस्तेमाल करते हैं, computer vision में इस्तेमाल करते हैं, to build the code, to build the models, to train the models. You can use Python की libraries. So that is why it's a very popular. That is why कि हमारे Python जो है programming language है is very, very popular. Now Python की बहुत सारी uses हैं, right? You have many applications of Python. It's a very versatile language. मतलब ये नहीं है कि एक ऐसी language नहीं कि आप बस खास applications के लिए ही आप stuck हैं. You cannot use it for anything other than that. नहीं, ऐसे नहीं है. With Python you can use it to make websites. Web development में use कर सकते हैं, finance में use कर सकते हैं. Finance में as in of course for example cryptocurrencies जैसे आ रही हैं, जैसे stock prediction करनी है. Stock market में आपने predict करना है कि इसकी stock price कितनी होगी, बढ़ेगी या कम होगी. Trading करनी हो, transactions करने हो. Of course data science में use करते हैं, which is a very budding field, लेकिन बहुत इसका बहुत ज़्यादा chances है कि बहुत बड़ा impact होगा हमारे future के society में, हमारी lives पे, हमारी economy पे. And it does, you can do very important stuff with Python. क्योंकि as I said, it's a very beginner friendly language. इसके साथ बहुत सारे support भी है, community support है, जो कि allow करती है कि we can
do important stuff in a much more क्या कहते हैं in easier manner, ठीक है. तो ये हमें enable करता है ये सारी चीज़ें करने के लिए. हम automation में भी यूज़ करते हैं. For instance, you want to automate a task जो कि काफ़ी repetitive है, काफ़ी boring है. For instance, आप कोई Excel sheets बना रहे हैं, उसमें counting कर रहे हैं, you can create bots जो कि सारा काम आपके लिए कर लेंगे. इसी तरह से robotics में यूज़ करते हैं. तो I mean we're going beyond software, we're going into the hardware side of things. So you can control a robot with Python, you can make it intelligent. मतलब उसकी path planning करवानी हो, उसको for example कुछ चीज़ detect करवानी हो, इंसानों को detect करे. For instance, अगर कोई hazard है तो वो determine कर सके हमारा robot. All of this intelligent stuff, all of these intelligent modules जो हैं, projects जो हैं, वो आप robotics में implement कर सकते हैं using Python. इसी तरह से of course game development में भी यूज़ करते हैं, which is another exciting application for Python. You'll find a lot of game designers when they find Python easier to work with. In the beginning, once you get started, you want to use a language okay आपके लिए convenient होगी. तो इस तरह से Python में बहुत सारी libraries exist होती हैं जो कि आपको allow करती हैं games बनाने के लिए. बहुत आसानी से आप games बना सकते हैं. तो these are the few applications कि मैंने mention किए हैं जो कि already use हो रही हैं with Python. Of course, there are many other applications of Python जो कि मैंने point out नहीं किए हैं. But I've only talked about those जो कि बहुत ज़्यादा majorly use किए जाते हैं, जो कि ज़्यादा आपको prominence है इनकी. Alright. So once again, so you might be wondering कि of course के level of complexity कितना है इस workshop का. So this particular, as I said, कि Python का workshop is for basic. हम basic of Python cover करेंगे, fundamentals of Python cover करेंगे. So it is mostly catered for people जिनके पास बिल्कुल ही कोई coding experience नहीं है. So if you're someone from an humanities कि आप subject पढ़ते हैं या finance में या marketing में हैं, and you've never done anything मतलब कोई technical related, coding related, then of course this is perfect for you. Of course मतलब आप इसके साथ आपको हम बहुत basic level हम Python पढ़ा रहे हैं, but of course we will spend a lot of time explaining each and every single detail ताकि आप अच्छे तरीके से मतलब समझ सकें चीज़ें. And of course if you already have मतलब आपके पास knowledge है Python की, this workshop will still be useful because of course there's nothing wrong with recapping and revising stuff. So yeah, so of course I hope by the end of this workshop what I want कि of course आपके तो fundamentals आपको Python के समझ आ जाए. Second thing, I want you guys to realize कि everyone can learn Python, right? मतलब आपको इतना आपको लगे कि यार ये तो बहुत ही आसान चीज़ है. It's a very simple thing to learn. And of course at the end I want कि आपको ये इस conclusion पे आ जाए कि everyone can learn Python. And I hope कि आपके जो इर्द-गिर्द आपके friends हैं, family है, you encourage them to learn Python as well. Okay. So in this particular session, I'll be using Visual Studio Code programming के लिए, right? So I already set it up, ठीक है. लेकिन अगर आपके पास नहीं है, आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया हुआ, then you can use an online compiler. तो ये compiler की आपको URL I hope नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे. Hopefully you can see it. और ये आप खोल सकते हैं. तो अगर आपने follow along करने हैं जो भी मैं demos कर रही हूँ, yeah, so you can मतलब open this, you can run stuff like if I press run, आपके पास terminal में आपको output भी नज़र आ जाएंगी सब कुछ. तो yeah, of course अगर आपको online compiler आप use कर सकते हैं. The reason why I'm saying कि आप for this particular session आप online compiler use कर सकते हैं is because क्योंकि मैं basics of Python cover कर रही हूँ. I'm not using any fancy libraries. I'm not using anything जिसको जो require करेगा कि आप library को install करें अलग से. नहीं, we are doing very basic stuff. And of course कि Python की जो inbuilt libraries हैं वो आप use कर सकते हैं इसके अंदर. But I would recommend कि बाद में जाकर आप Visual Studio Code को install कर लें. And of course Anaconda जो है software वो install कर लें. तो Anaconda software का एक फ़ायदा ये होता है कि it firstly allows you to make a lot of cool stuff, ठीक है. सेकेंड चीज़ होता है कि Python ऑलरेडी इंस्टॉल इसके अंदर आता है. इसको चीज़ें मैनेज करना आसान होता है. नई लाइब्रेरीज आपने इंस्टॉल करनी हो तो वो आसानी के साथ हो जाती हैं. ऑलरेडी आपके पास सॉफ्टवेयर्स वो अवेलेबल होते हैं जो आपको मतलब रिकमेंड करता है. एंड ऑफ कोर्स
course मेरा जो Visual Studio Code है, that's the software I'll be using for coding Python. It makes, if you use the software like this, it makes your life easier, क्योंकि वो आपको अगर आप कोई गलती भी करें तो आपको suggestions देता है कि नहीं आप गलती कर रहे हैं, या predictions आपको देता है कि how should you finish your code. तो इसलिए I would suggest कि आप Visual Studio Code डाउनलोड कर लें, but for you to run Python properly आपको Anaconda की भी ज़रूरत होगी. तो let me open the workshop. अगर मैं हमारी लाइव स्ट्रीम की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, you will see this link, set up Visual Studio Code using this tutorial. तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई अपलोड की हुई है, which you can use to install and set up, to install Visual Studio Code for Python. ठीक है, तो उसमें सारा कुछ एक्सप्लेन हुआ है how to use this particular thing. तो of course during the tutorial during this session might be difficult, तो बाद में जाकर I encourage you कि आप इसको इंस्टॉल कर लें, सारे स्टेप्स जो है उनको फॉलो करें to be able to set it up. Okay. All right. So now what I will do is, let's go back to our actual presentation. Okay. Let's talk about the agenda of the workshop. So workshop का agenda ये है. Firstly, we'll cover right now. अगर आप बिल्कुल, if you have no coding experience, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, it will not make sense to you. I mean, you'll be like, what is this? What are these things? Okay. Don't worry. We'll go through all of them. I'll explain each and every single detail about these things, or by the end of the workshop, you will know all of them. मतलब आपको समझ आएगा, okay, variables, that is easy. You know, data types, how I know what those are. Okay. So this is the agenda of the workshop. Basically, हम variables के साथ start करेंगे. This is a very important concept in programming कि variables हम set कर सकते हैं. तो और सारी programming languages में ये option होता है. फिर data types होती हैं, मतलब कि समझें कि एक फॉर्मेट, एक डेटा को स्टोर करने के ख़ास फॉर्मेट्स होते हैं. ठीक है, तो उनके एग्जांपल्स में दिखाएंगे कि कौन कौन सी एग्जिस्ट करती हैं, किस तरह से स्टोर करते हैं. फिर अगर आपके पास टेक्स्ट है, ठीक है, आपको सेंटेंस बनाया है, तो टेक्स्ट को किस तरह मैनिपुलेट करते हैं, इसको हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन भी कहते हैं. फिर बाद में, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिक्स की हम एग्जांपल्स देखेंगे, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी हम यूज़ करेंगे. So you'll understand what operators are. ठीक है, operators मतलब the context of programming क्या होता है, especially in the context of Python. What do those mean and what can you do with them? Logical operators, comparison operators. हम 3 types of operators को देखेंगे. And then of course list बनाना सीखेंगे, how to make list, बहुत सारी functions होती हैं list के साथ, उनको manipulate करना हो, मतलब if you want to make it longer, कोई चीज़ remove करनी हो, कोई चीज़ add करनी हो. Right, so we'll go through all of that process. क्या किस तरह से आप फंक्शन, किस तरह से कोड करते हैं to edit list. And of course important चीज़ है वो है if else conditionals. मतलब conditional statements कहते हैं, मतलब कि अगर आपने rules को set करनी है, आपने एक rule set किया कि अगर ये condition होती है तो हम ये वाला काम करेंगे, ये action करेंगे. ठीक है, so this is possible with Python, this is possible with every programming language. और इसको सीखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नियरली एवरीथिंग, सारी जो आपकी मतलब एप्लीकेशंस हैं, मतलब वेब डेवलपमेंट में, मशीन लर्निंग में, रोबोटिक्स में, यू विल बी ऑफ कोर्स यू विल बी यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट्स, रूल्स बनाएंगे टू इम्प्लीमेंट सम एक्शंस. ठीक है, उसी तरह से उसके बाद हम लूप्स भी बनाएंगे. तो वील अंडरस्टैंड व्हाट दोज आर. इट माइट साउंड फनी कि यू नो व्हाट इज़ अ लूप context of programming, but you'll understand that these are very important things in Python. And then of course we have a few examples. तो जो major example होगा हमारी इस session का वो होगा कि we're going to build a calculator app. Simple से calculator app बनाएंगे, and you'll see by the end of this session, of course you can show it off to your friends कि oh, I've built my very own calculator app. ठीक है, तो हम ये करेंगे. So firstly let's cover one thing. Let's talk about one क्या कहते हैं important keyword, ठीक है, related to programming. सारी programming से related है. तो अभी मैं जो सॉफ्टवेयर में आपको दिखाया था, Visual Studio Code, समझे ये कंपाइलर ही है, कंपाइलर कहते हैं. और अगर मैं कोड को सेव करूँ, मतलब कोड को मैंने रन करना है, तो मैं कोड को कंपाइलिंग करूँगी, कोड की कंपाइलिंग करूँगी. एंड what this means is, ठीक है, कि basically right, what
व्हाट दिस बेसिकली मीन्स इज़ कि आपका जो कंपाइलर है वो कंपाइल करता है आपकी जो भी आपने कोड लिखा है, टाइप किया है, ऐसे कोड में इसको ट्रांसलेट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, ताकि आपका कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो जो भी आपको लेफ्ट में आपने कोड टाइप किया हुआ है, इन ख़ास फॉर्मेट में आपने टाइप किया, पाइथन में लिखा है या किसी और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, C++ में लिख दिया है, राइट। एंड सो अगर मैं रन करूँ फॉर इंस्टेंस, अगर कंपाइलर नहीं है आपके कंप्यूटर पे, योर कंप्यूटर विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू विद इट, ठीक है। बेसिकली अगर आपको उसको आपने इसको कन्वर्ट करना है टू मशीन कोड so that it can understand. So this is an example of machine code, ones and zeros, binaries में मतलब होता है ऐसा कुछ. And of course, so we won't go too much into detail with our separate topic. मतलब जो होता है क्या कहते हैं मशीन कोड क्या होती है, किस तरह से कंप्यूटर पढ़ता है उसको. But just understand कि basically आपके पास you're writing something in a खास format, and for your computer to be able to understand it, you have to use a compiler, क्योंकि वो ट्रांसलेट करता है in a language that the computer can understand, ठीक है. तो that's why जो आप फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको एग्जांपल दिए ये भी कंपाइलर है, ऑनलाइन कंपाइलर है. तो जो भी आप चीज़ यहाँ कर रहे हैं वो ऑफकोर्स फिर कंपाइल करता है ताकि आपका कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके. या so that's about it for compilers and compiling. Simple sum up. I tried to my best to explain it in simple words. Yeah, so this is an important word, an important vocabulary related to programming. The second thing मैं एक और प्रोग्रामिंग रिलेटेड वर्ड इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, जो कि अभी मैंने मेंशन भी किया, दैट इज लाइब्रेरीज. लाइब्रेरीज का ये क्या होता है कि I'll explain this using an analogy, ठीक है, because if I explain it straight away हमें समझ नहीं आएगा कि क्या मैं कह रही हूँ. It would sound like nonsense, it would sound crazy, ठीक है. तो इसलिए पहले मैं एक एनालॉजी देती हूँ and then I'll relate it to programming. तो इमेजिन करें you want to eat French fries, okay, and आप खुद बना रहे हैं, आपको प्लान है मैं खुद ही French fries बनाऊंगा. तो आप मतलब ये पील पोटैटो को आप साफ़ करेंगे, उसको पील करेंगे, उसको पीसेस में कट करेंगे, एंड देन ऑफ कोर्स आप ऑयल को गर्म करेंगे एंड देन उसको फ्राई करेंगे और उसमें सॉल्ट डाल देंगे. But let's just say you're like, no, you know what, French fries would be perfect अगर इनके साथ केचप भी हो. Now usually you're not going to make your own ketchup, ठीक है. मतलब अगर आप बनाएंगे, आपके पास दो ऑप्शन है. अगर आप बनाएंगे भी सही तो you'll spend hours, you spend so much effort making ketchup, ठीक है. उस वक्त तक आपके French fries would no longer be मतलब edible, ठीक है, वो stale हो जाएंगे probably. तो आपका दूसरा ऑप्शन ये है कि you use bottled ketchup, like someone else has already made the ketchup for you, ठीक है. तो एक तो आपका टाइम नहीं ज़ाया होता, ऊपर से ज़्यादा कन्वीनियंट चीज़ है. What you're doing is you're taking someone else's work and using it to your benefit, ठीक है. And अपने आप केचप के साथ अपने फ्रेंच फ्राइज के साथ उसको इकट्ठा कर रहे हैं, like उसको उसके ऊपर डाल रहे हैं, right? So in the same thing in the context of programming, ठीक है, of course आपके कोई एप्लीकेशन बनानी है, आप काफ़ी टाइम और एफर्ट लगाएंगे, but there are certain things where it doesn't make sense कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डालें, बहुत ज़्यादा टाइम लगाएं. Why? Because of course एक तो ये होगा कि आप you'll be like reinventing the wheel, ठीक है. It does not make sense to do something जो कि हज़ारों लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है. बहुत सारे लोगों ने क्या किया होता है, लाइब्रेरीज बनाई होती हैं. तो ऐसा कोड, ऐसी फंक्शंस होती हैं जो कि मतलब एवरीवन यूजेस एवरी डे. फॉर इंस्टेंस हम ट्रिग्नोमेट्री की जो होती हैं फंक्शंस, राइट, इट वुड नॉट मेक सेंस फॉर यू टू गो एंड राइट सब कुछ सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अलग अलग टाइप करते जाएं, मतलब लिस्ट आउट करते जाएं. दैट बी वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है. समवन एल्स हैज़ ऑलरेडी मेड एक मैथमेटिक्स की लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती है पाइथन में, और वहाँ पे सारी फंक्शंस डाली हुई है ट्रिग्नोमेट्री की. तो आप जब क्या करेंगे, आप उनको अगर अपने कोड में डालने, अपने एप्लीकेशन में डालने, आप वो लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे, उसकी फंक्शंस को यूज़ करेंगे टू यूज़ इट इन योर एप्लीकेशन. So here you're doing the same thing. Okay, you're using bottled ketchup. In this case, you're using a Python library to make your life easier, to do something that you wanted to achieve. Okay. So yeah, as I said, of course, Python की libraries बहुत सारी हैं. तो mathematics से भी, mathematics में of course trigonometry से ज़्यादा trigonometry से ज़्यादा और भी options हैं mathematics की library में. Of course, computer vision की libraries होती हैं. अगर आपने कोई image को manipulate करना हो, मे बी आपने कोई बैकग्राउंड रिमूव करना हो,
तो उसके लिए अलग लाइब्रेरी होगी। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अलग अलग लाइब्रेरीज होती हैं, उनमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इंटेंसिव मैथमेटिक्स यूज़ होते हैं। इंटेंसिव उसमें यू हैव लाइक प्रॉब्ली हंड्रेड्स ऑफ लाइन्स ऑफ कोड, तो आप it would be better कि it would be better कि आप मतलब go and start typing out वो सारी hundreds of lines, that would not make sense, ठीक है। वही बात मैं कह रही, आपका effort आपका टाइम ज़ाया होगा। if someone else has already made it for you और वो मतलब with the intent के सारे लोग यूज़ कर सकें, then of course I would suggest कि आप उन libraries को यूज़ करें। तो as I said कि मतलब ये this is an example, I hope it makes sense to you now कि libraries basically it's क्या कहते हैं, they contain various modules, functions होते हैं इनके पास जो कि आप reuse कर सकते हैं, ठीक है। and of course once we start, मैं example देती हूँ जिसमें मैथ्स का दिया था, trigonometry का, इसी तरह से square root का होता है। now square root का जो होता है क्या कहते हैं, कोड आप लिखते हैं, it's fairly simple, ठीक है, in Python अगर आप अभी टाइप करें, but again अगर आपको बहुत सारे 1000 दफ़ा स्क्वायर रूट आपने निकालना है, that would not make sense कि आप 1000 दफ़ा वो इंडिविजुअली लाइंस ऑफ कोड लिखें टू फाइंड द स्क्वायर रूट, ठीक है। इन दिस केस इट वुड मेक मोर सेंस कि आप लाइब्रेरी, मैथ्स की लाइब्रेरी यूज़ करें पाइथन में टू फाइंड द स्क्वायर रूट। दैट्स बेसिकली द जिस्ट ऑफ लाइब्रेरीज। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट दैट मीन्स। इस एनालॉजी के साथ आई होप आप विजुलाइज सही तरह कर सकते हो। ओके, alright, important thing with Python and of course generally in Python, libraries में भी और वैसे और भी चीज़ों में भी, you have to be very very careful about spelling, ठीक है। तो आपने डॉक्यूमेंटेशन देखनी है, आपने देखना कि क्या कहाँ पे कैपिटल लेटर्स होते हैं, कहाँ पे कैपिटल लेटर्स नहीं होते, इस तरह से कहाँ पे ब्रैकेट्स लगाने होते हैं। तो दिस थिंग इट वुड नॉट मेक सेंस, पाइथन वुड नॉट अंडरस्टैंड दिस, बट दिस थिंग अगर आप मैथ लाइब्रेरी आपने इंपोर्ट की हुई है, दिस थिंग वुड मेक सेंस, ठीक है। तो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट स्पेलिंग एंड ऑफ कोर्स बी वेरी केयरफुल अबाउट स्पेलिंग जब आप अपना कोड लिखते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज कि किस तरह से पाइथन, हाउ डज द पाइथन रीड योर कोड, सॉरी हाउ डज द कंपाइलर रीड योर कोड, ठीक है। आपने पाइथन में कोड लिख लिया, उसको कंप्यूटर इम्प्लीमेंट किस तरह करता है। तो व्हाट हैपेंस इज कि सारा कुछ सीक्वेंशियल होता है, मतलब लाइन बाय लाइन सब कुछ रीड किया जाता है। तो पहले वो ए करेगा, ए रीड करेगा, फिर इसको इम्प्लीमेंट करेगा, बी रीड करेगा, तो बी को इम्प्लीमेंट करेगा, इस तरह से। तो सारा कुछ सीक्वेंशियल होता है। जब हम लूप्स बनाना शुरू करेंगे देन ऑफ कोर्स यू विल अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स के सीक्वेंस में आप थोड़ी सी तब्दीली ला सकते हैं। तो जनरली ऑफ कोर्स इट्स जस्ट लाइन बाय लाइन, मतलब यू गोइंग डाउन द लाइन्स। तो फॉर इंस्टेंस अगर मैं विजुअल स्टूडियो कोड लिखूँ, ये इस तरह लिखूँ, फिर बाद में ये इस तरह लिखूँ और ये इस तरह लिखूँ, ये कंप्यूटर विल रीड दिस फर्स्ट, ठीक है, एंड देन ऑफ कोर्स इसको इम्प्लीमेंट करेगा। राइट नाउ दिस इज जस्ट नॉनसेंस, ठीक है, इट डजंट मीन एनीथिंग। फिर लाइन नंबर 3 पे जाएगा, वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करेगा। एक दफ़ा जब इम्प्लीमेंट कर लिया देन इट गोज टू लाइन नंबर 5, ठीक है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये सारा कुछ लाइन बाय लाइन और सीक्वेंशियल होता है, ठीक है। तो देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस रूल and we'll learn about this बाद में। Okay, now very first thing जो हम करते हैं जब लोगों को हम पाइथन सिखाते हैं, हम करते हैं कि we want to show them कि हमारा कंप्यूटर हमसे बात कर सकता है, हमारा कंप्यूटर हमसे कम्युनिकेट कर सकता है। Yeah, so basically as I said, स्क्रीन में नज़र आ रहा है, wait, my computer can talk to me? Well, yes and no, ठीक है। Basically आप what you're doing is you're training a parrot, ठीक है, you're telling a parrot to say these exact same words, these exact same thing, ठीक है। वो खुद से अपना कोई सेंटेंस क्रिएट नहीं कर रहा, आपने उसको सिर्फ एक सेंटेंस बताया कि ये तुमने प्रिंट करना है। तो ये आउटपुट जो होता है ये प्रिंट होता है, यू प्रिंटिंग इट टू द कंसोल, ठीक है। तो कंसोल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। अगर कोई एरर्स हुई हैं कोड में, या मतलब कंप्यूटर आपसे बात कर रहा है, कोई चीज़ आपने अपडेट करनी हो, कोई नंबर प्रिंट करने हो, कोई सेंटेंस प्रिंट करना हो, इस तरह से। सो इट्स बेसिकली सम place where you get all the information, ठीक है। So let's do this, let's try our very first code, ठीक है। So I'll open my Visual Studio Code, ठीक है। ऑलरेडी मैंने एक पाइथन फाइल खोली हुई है, सिंपली आप यहाँ पर जा सकते हैं, दबा सकते हैं, एंड यू कैन राइट मेक अ न्यू फाइल, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी test1.py फाइल बनाई हुई है।
तो py होती है हर पाइथन फाइल की ये फॉर्मेट होता है आखिर में यू हैव py। जैसे इमेज फॉर्मेट इमेज फॉर्मेट हो सकता है जेपेग फॉर्मेट होगा, तो पाइथन फाइल का फॉर्मेट होता है py के साथ। नाउ इन दिस केस अगर आप ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, ऑलरेडी ये जो है प्रिंटिंग वाला जो एग्जाम्पल है ऑलरेडी उन्होंने टाइप किया हुआ होगा, तो ऑल यू हैव टू डू इज़ रन इट, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड आ जाता है। तो ये किस तरह चलता है, राइट। बेसिकली क्या होता है कि प्रिंट आप लिखते हैं, ठीक है, लोअर केस है सारा कुछ, अपने ब्रैकेट बनाना है, एंड देन यू यूज़ डबल कोट्स। जो चीज़ डबल कोट में अंदर होगी, ठीक है, एवरीथिंग इनसाइड डबल कोट विल बी प्रिंटेड। इन दिस केस मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क, डबल कोट्स मैंने बंद किया, एंड देन आई पुट ब्रैकेट मैंने फिर बंद किया। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि सारा कुछ बैलेंस हो जाए, कि अगर आपने ब्रैकेट खोला है तो ब्रैकेट बंद करना भी है, अगर आपने डबल कोट डाले हैं तो उसका जो पेयर है वो भी आपने डालना है। बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, क्योंकि अगर मैं मिस आउट कर दूँ ब्रैकेट, it's going to give me an error. It's going to say wait a minute, something's wrong. In this case आपको ये कंपाइलर, ये वाले कंपाइलर को बता भी रहा है कि something is missing, right? तो ऑफ कोर्स आपको ये जो हमारी एरर्स आती हैं यूजली आप उनको हमेशा पढ़ा करें, बिकॉज दे गिव यू हिंट्स कि आपने कहाँ पे मिस्टेक की हुई है, ठीक है। तो वंस आई पुट दिस, वापस मैं डाल दूँ, ये प्रिंट हो जाता है। नाउ लेट्स गो टू मेरा वाला जो है विजुअल स्टूडियो कोड है। सेम चीज़ जब मैं बात की थी ना कि विजुअल स्टूडियो कोड का एक फ़ायदा ये है कि वो आपको सजेशन देता है। अभी मैंने कोड लिखना ख़त्म नहीं किया, फिर भी मुझे सजेशन दे रहा है कि आर यू यूजिंग दिस पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। तो उसको मैं क्लिक कर दूँ, यस, मतलब मैंने कर लिया। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। अच्छा, बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, बिकॉज मैं अभी ये मिस्टेक करने वाली थी। ऐसे कुछ स्पेसेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। मेक श्योर कि सारा कुछ कोई एक्स्ट्रा स्पेस ना हो एट द बिगिनिंग ऑफ योर कोड, ठीक है, एंड देन टाइप इट। तो वही चीज़ मैं हेलो वर्ल्ड लिखती हूँ, ठीक है, एंड उसको मैं सेव कर देती हूँ। तो यहाँ पे नुक्ता जो है मुझे बता रहा है कि आई हैव नॉट सेव्ड इट येट, Ctrl+S से मैंने दबाया, सेव हो गया, एंड देन आई प्रेस रन, ठीक है। तो ये रन का बटन यहाँ पे है, एंड यहाँ पे मेरे टर्मिनल पे लिखा आ गया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये प्रिंट हो गया। तो बेसिकली जब भी आप प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे वो फिर टर्मिनल पे प्रिंट आउट करेंगे। अच्छा, जो मैंने बात की थी ना कि स्पेस नहीं डालना, तो इफ़ आई हैड पुट सम स्पेस हियर, ठीक है, चलो लेट्स से एक भी स्पेस डाल दी, ठीक है, ये मुझे बताएगा अनएक्सपेक्टेड इंटेंट, वो कंपाइल नहीं करेगा कोड को, वो रन नहीं कर पाएगा बिकॉज ये एक एरर है, ठीक है। इस चीज़ का बड़ा आपने ख्याल रखना है। ऑफ कोर्स दूसरी चीज़ जो मैंने मेंशन की थी, स्पेलिंग का आपने ख्याल करना है। अगर मैं यहाँ पे पी बड़ा कर दूँ, मुझे इट विल नॉट बी एबल टू रिकगनाइज इट, ठीक है, हमारा कंपाइलर नहीं रिकगनाइज कर पाएगा। तो अपने स्पेलिंग का भी बहुत ख्याल रखना है। यू रन दिस, इट वर्क्स। तो इन चीज़ों के ये बेसिक चीज़ें हैं, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट देम। ओके, नाउ लेट्स गो एंड गो टू द नेक्स्ट पोर्शन जो हमारा है। ऐसा yes, of course, you can print information, status updates, names, sentences. So let's try out typing कोई different चीज़ हम type करते हैं यहाँ पे। Maybe you can say कि the train to Lahore has been delayed, ठीक है। बहुत लंबा सेंटेंस आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि look at this, ये पूरा डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे, the train to Lahore has been delayed, ठीक है। तो दिस इज़ पॉसिबल, एंड ऑफ कोर्स मतलब कोई भी आप स्टेटस अपडेट लिख सकते हैं। कोई भी आपने अगर नंबर लिखना हो, मे बी आपने नंबर्स को लिख लेते हैं, चलो वो भी प्रिंट हो जाती हैं। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल, ठीक है, विद ऑफ कोर्स विद पाइथन। दिस इज बेसिक स्टफ, वेरी वेरी बेसिक स्टफ। अभी हम आगे जाके थोड़ा पढ़ेंगे और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं विद द प्रिंट ऑप्शन, ठीक है। So yeah, so one thing about with the print function is it helps us in debugging. ये एक और नया vocabulary है related to programming. आपको अपने कोई प्रोग्रामिंग करना ही आपने की हुई, तो this word might be alien to you. Don't worry. Basically debugging क्या होता है, आपके कोड्स में bugs होते हैं,
and you're trying to get rid of them. So that is called the debugging process. So we don't have literal bugs in our code, of course not, but what we mean is that we have made some mistakes. Okay, which mistakes हैं which don't let जो आपका जो एप्लीकेशन है वो उस तरह से बिहेव नहीं करेगी जिस तरह से आप डिसाइड करते हैं बिकॉज ऑफ बग्स, क्योंकि ना कोई बग्स प्रेजेंट हैं. तो ऑफ कोर्स फिर आपको डीबगिंग करनी होती है टू फिगर आउट कहाँ पे बग्स हैं, कहाँ पे आपने मिस्टेक की है, और फिर उसको सही तरह से चेंज कर लें ताकि आपका कोड प्रॉपरली रन कर सके. तो दिस इज़ वेरी, इफ यू आर प्रोग्रामर, दिस इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस, बट इट्स अ प्रोसेस जो मल्टीपल टाइम्स अ डे आपको करनी पड़ती हैं. For instance, of course, there's many stages of debugging. People, firstly, you'll be in denial. नहीं, that's not possible. And then मेरी machine पे नहीं होगा. And then, of course, eventually मेहनत करके you figure out, okay, where's the bug. Now, with printing, with this print function is help करता है कि क्योंकि मैंने कहा था कोड आपका sequential है, तो अगर आपको कोई error कर दिया है, ठीक है, let's say आप यहाँ पे और डाल देते हैं. Let me just make it less confusing. 1, 2, 3 और फिर एक और देख लेते हैं प्रिंट 4. ठीक है, लेट्स से मैंने यहाँ पे कोई एरर कर दिया लाइक दिस. ठीक है, एरर कर दिया एंड व्हेन यू रन दिस, ठीक है, आपको ये बताता है यू कैन यूज डीबगिंग. बेसिकली आपको नजर आएगा ओके वेट लाइन 7 तक ये चीज़ मतलब कोई इशू आ रहा है मुझे. ठीक है, यहाँ तक इशू आ रहा है, देन यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड सी मे बी इससे पहले कोई इशू था, तो यू गौर से देख के वापस अब चेंज कर सकते हैं. समटाइम्स एरर्स ऐसे भी होते हैं कि आपका कोड कंपाइल हो जाता है. ठीक है, तो इसलिए उस वक्त इट्स वेरी हेल्पफुल कि आप प्रिंट स्टेटमेंट्स यूज़ करें देखने के लिए कि जैसे हाउ इज़ योर कोड बिहेविंग. ऑफ कोर्स दिस इज मोर इंटरमीडिएट लेवल स्टफ. वैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि हाउ प्रिंट फंक्शंस आर यूज्ड. ठीक है, एक तो ये है कि आपने इन्फॉर्मेशन प्रिंट आउट करनी है, स्टेटस अपने प्रिंट करना है. ऑफ कोर्स एक और भी इसके जो ऑप्शन यूज़ होता है कि डीबगिंग में यूज़ करते हैं. नाउ प्रिंट, नाउ ऑफ कोर्स कमेंट्स के बारे में बात करते हैं इन प्रोग्रामिंग. आई थिंक इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यू हैव समथिंग कॉल्ड कमेंट्स. तो क्या होता है, इट्स अ लाइन ऑफ कोड दैट यू विल नॉट बी कंपाइलिंग. ठीक है, तो इसका ये फ़ायदा होता है कमेंट्स लिखने का कि इट हेल्प्स यू कीप ट्रैक ऑफ थिंग्स. ठीक है, let me show you an example. Basically with Visual Studio Code, with Python, अगर आपने कोई कमेंट करना हो तो आप हैशटैग वाला सिंबल डालते हैं और मैं यहाँ कुछ भी लिख दूँ, दिस इज अ कमेंट. ठीक है, इट विल नॉट बी कंपाइल्ड. ठीक है, यहाँ पे मैं रन करिए. ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ इसका कोई इशू नहीं है. अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ तो इट विल थ्रो इन एरर. ठीक है, तो you have to be very careful, of course, make sure that you include this comment. ठीक है, कमेंट आप उसके ऊपर भी लिख सकते हैं कि प्रिंटिंग नंबर 1. ठीक है, ये तो साइड पे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं. तो इसका ये फ़ायदा होता है प्रिंटिंग का कि ऑफ कोर्स इट हेल्प्स यू कीप ट्रैक कि आपका कोड क्या कर रहा है. तो ये डिफाइनिंग कि भी अच्छा मैं अभी नेक्स्ट लाइन में आई विल बी प्रिंटिंग 1. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आई विल बी प्रिंटिंग नंबर 2. तो द आइडिया इज़ कि क्योंकि आप प्रोग्राम अपना बनाते हैं, मे बी यू विल बी स्पेंडिंग मंथ्स मेकिंग इट. ठीक है, और कई महीने बाद वापस आप अपने ओरिजिनल कोड पे आएंगे तो चांसेस हैं आपको कुछ चीज़ याद नहीं रहेगा. ठीक है, ऑफ कोर्स वी आर ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज समथिंग दैट्स गोइंग टू हैपन. तो इन दिस केस बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि आप हमेशा कमेंट लिखें ताकि आपको पता हो कि ये फलां चीज़ क्या कर रही है. फॉर इंस्टेंस आपने कह दिया, आपने इंफॉर्मेशन लिख दिया कि दिस कोड प्रिंट्स आउट लाइन बाय लाइन. ठीक है, तो ये आपको मतलब मुझे याद रहेगा 5 months from now when I come back I will oh अच्छा ये काम होता है this code. So it's best practice to include this. Okay, now let's go and mention another thing. एक और भी तरीका होता है for writing comments, and that is कि आप you have multi-lined comments. So in this case क्या होता है कि तो पहले मैंने लिखा था कमेंट हैशटैग लिखते हैं, then you write whatever you want. वो फिर आप सिर्फ एक लाइन में ही कर सकते हैं. You cannot have multiple lines. ठीक है, डॉक स्ट्रिंग्स जो होते हैं what they do is कि you have multi-line comments होते हैं और आमतौर पर इसको हम इस्तेमाल करते हैं जब आपने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखनी हो
कि आपका ये पर्टिकुलर फाइल जो है पाइथन की वो क्या करती है। तो लेट्स से आपके पास हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ कोड की लाइंस हैं, राइट। तो यू इन दैट केस वो मेक सेंस कि आप डॉक स्ट्रिंग लिखें कि भी ये पर्टिकुलर वेरिएबल क्या करता है, ये इसका काम क्या है, इस कोड का किस तरह से चलता है। अगर आपने कोई चीज़ बोरो की हुई है, कोई लिंक देना हो किसी यूट्यूब वीडियो का या ट्यूटोरियल का, यू कैन इंक्लूड दैट इन डॉक स्ट्रिंग। लेट मी शो यू गाइस, ठीक है। वही बात मैंने की थी ना कि आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस क्योंकि दिस पार्ट विल नॉट बी सीन एज ए कमेंट, ठीक है। तो अगर आपने मल्टी लाइन कमेंट्स करने हो, दिस इज व्हाट वी डू। So you have to use 3 single quotes, ठीक है। यहाँ पे सी ऑटोमेटिकली आ गया 3 single quotes. So whatever I type here, मतलब this print 1 2 3 4, मे बी आप अपने बारे में लिख दें कि ऑथर कौन है, आप ये लिख दें डेट क्या है, यू नो इस तरह। मे बी आप लिंक ले दें कि लिंक लिख दें कि ओके यहाँ से मुझे, अब यहाँ पे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है अबाउट दिस पर्टिकुलर फाइल। तो इस तरह से मल्टी लाइन मैं कमेंट्स लिख दिए, मल्टी लाइन मैंने कमेंट्स लिख दिए। एंड व्हेन आई रन दिस, ऑफ कोर्स ये सेम चीज़ ये प्रिंट आउट नहीं होते, ये कोई इफेक्ट नहीं करते हमारे फाइल जो आउटपुट पे है। तो इट्स गुड प्रैक्टिस टू यूज़ दिस जब आपके पास बहुत सारी लाइन्स ऑफ कोड है, राइट। अभी तो हम सिंपल चीज़ें बना रहे हैं, सिंपल हम इस सेशन में सिंपल स्टफ बनाएंगे, तो वी विल नॉट बी यूजिंग डॉक स्ट्रिंग्स। बट मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, एनालॉजी देना चाहती हूँ कि वाई डॉक स्ट्रिंग वुड बी इम्पोर्टेंट। फॉर इंस्टेंस आपके पास यू हैव मेडिसिन आपके पास है, राइट। एंड ऑफ कोर्स जब आप चाहते हैं कि पेशेंट उसको यूज़ करें, यू हैव टू गिव आउट सर्टेन इंस्ट्रक्शंस कि किस तरह से आपने खाना है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो मतलब वही हम काम करते हैं डॉक स्ट्रिंग के साथ। जस्ट इमेजिन इन दैट केस कि जो आपको लगता है इन्फॉर्मेशन आपके कस्टमर को ज़रूरत होगी, आपके को-वर्कर को ज़रूरत होगी, देन बिकॉज इज अ लॉट ऑफ डिटेल टू पुट इन, तो आप यूजली डॉक स्ट्रिंग में डालेंगे। दैट इज़ बेसिकली आइडिया बिहाइंड डॉक स्ट्रिंग, ठीक है। क्या अच्छा, अभी फिलहाल हम आउटपुट्स करते आ रहे थे, मतलब द कंप्यूटर वाज प्रिंटिंग टू द टर्मिनल। नाउ द कंप्यूटर कैन आस्क यू कि वो आप उसको इनपुट्स दें, ठीक है। तो लेट्स ट्राई दिस बेसिकली। फॉर इंस्टेंस आपसे पूछ सकता है कि लेट्स रेज ऑल ऑफ दिस, हम लिख सकते हैं इनपुट होता है फंक्शन, ठीक है। पहले क्या कहते हैं, हम प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से वेयर वी हैड एन आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे इनपुट एज द नेम सजेस्ट यूज़र इनपुट, आप उसको कुछ चीज़ इन्फॉर्मेशन देंगे, कुछ सेंटेंस देंगे, ठीक है। तो लेट्स से कि अब इसके लिए आपने ब्रैकेट बनाना होगा। सेकेंड चीज़, जो आप चीज़ इंक्लूड करेंगे इसके अंदर, दैट विल बी प्रिंटेड आउट टू द टर्मिनल। तो अगर कोई सवाल करना हो तो आप इस इनपुट वाले ब्रैकेट्स के अंदर डाल दें। तो मे बी आई कैन राइट व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, हमेशा क्वेश्चन मार्क के बाद ना स्पेस थोड़ा सा डाला करें, क्योंकि ताकि फॉर्मेटिंग अच्छी हो जाए, ठीक है। इफ आई रन दिस, ये मुझे ऑप्शन देता है कि मैं कुछ चीज़ सबमिट कर दूँ। तो आई कैन राइट माई ओन नेम, मैं इसको सबमिट कर सकती हूँ, फिर ऑफकोर्स कोड एंड हो जाता है। तो मैंने बेसिकली कंप्यूटर को अपना इन्फॉर्मेशन दे दिया, इनपुट कर दिया इसके पास, इट्स गोइंग टू स्टोर इट। तो राइट नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि अभी मतलब व्हाट एक्जेक्टली इज इट डूइंग राइट नाउ। ऑफ कोर्स मतलब नेम तो दे दिया, बट दैट्स नॉट रियली हेल्पिंग मी आउट, ठीक है। तो विल डू समथिंग विद दिस, विल वर्क विद दिस टू मेक मोर यूजफुल स्टफ, ठीक है। तो उसको करने से पहले आई हैव टू एक्सप्लेन यू गाइस एक कॉन्सेप्ट इन प्रोग्रामिंग, जो कहते हैं वेरिएबल्स। तो आई एम श्योर कि जब आप स्कूल में होते थे, व्हेन यू वर स्टडीइंग अलजेब्रा, हम कहते थे फॉर इंस्टेंस लाइक x इक्वल्स 2, y इक्वल्स 4 या y इक्वल्स 0, इस तरह से। तो हम x और y को हम एक वैल्यू दे रहे थे कि भाई इसकी ये वैल्यू है, ठीक है। तो मतलब ये बेसिकली x और y वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स की एक वैल्यू है, हमने डिनोट की हुई है कि x इक्वल्स 2। पाइथन में भी आप ये वेरिएबल्स को एक वैल्यू दे सकते हैं कि भी x इक्वल्स 2, y इक्वल्स 4, ठीक है। और बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह जिस तरह से मैं स्क्रीन पे दिखाया, इसी तरह से आप वैल्यूज सेट करते हैं, ठीक है। तो लेट्स ट्राई दिस आउट, लेट मी गेट रिड ऑफ दिस। नहीं, बल्कि मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, ठीक
ठीक है, अभी मैंने इसको इस्तेमाल नहीं करना. लेट्स मी मेक अ न्यू वेरिएबल x इक्वल्स टू y इक्वल्स व्हाट. ठीक है, मैं प्रिंट आउट करती हूँ दोनों को. प्रिंट x. तो अभी मैंने डबल कोट्स नहीं इस्तेमाल किया. ठीक है, वाई इज दैट? बिकॉज मेरे पास में वेरिएबल का जो कंटेंट है उसको मैं प्रिंट आउट करना चाहती हूँ. तो इन दिस केस डायरेक्टली मैंने वेरिएबल का नेम डाल दिया इनसाइड द प्रिंट फंक्शन. इसी तरह से प्रिंट y. सेम थिंग मैं यहाँ पे कर रही हूँ. और इसके यहाँ पे यूजली मुझे प्रेडिक्शन भी देता है. कोई भी वेरिएबल्स आप बनाएंगे इन विजुअल स्टूडियो कोड या कोई भी पाइथन की कोई सॉफ्टवेयर, वो आपको प्रेडिक्शन देगा कि ओ डू यू वांट टू वर्क विद दिस पर्टिकुलर वेरिएबल. ठीक है, तो ये मेक्स योर लाइफ ईजियर. लेट मी रन दिस एंड आई सी 2 and 4. तो मैंने क्या किया था, सीक्वेंशियल है. पहले मैंने कहा था x को प्रिंट करो, तो मैंने कहा प्रिंट y. ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया. नाउ आई कैन डू अनदर थिंग एज वेल. हमने जो पहले कोड लिखा था, व्हाट इज़ योर नेम. ठीक है, इसको मैं इसे कमेंट आउट कर दूँ दोनों को. व्हाट इज़ योर नेम, इसकी जो मैं इनपुट दे रही हूँ वो भी मैं वेरिएबल में स्टोर कर सकती हूँ. ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ नेम. ठीक है, तो वेरिएबल नेम्स आप कुछ भी रख सकते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. 2 चीज़ें आपने ख्याल रखनी है. एक तो यह कि स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट ना हो. सेकेंड थिंग इज कि नंबर से स्टार्ट ना हो. ठीक है, शुड ऑलवेज स्टार्ट विद कैरेक्टर्स, और उसके बाद में आप कोई नंबर डालना चाहें इस तरह का, तो दैट इज़ पॉसिबल. ठीक है, अभी मैंने नेम मैंने लिख दिया. ठीक है, नेम 1 कर देते हैं. चलिए, और फिर इसको मैं कॉपी करती हूँ. व्हाट इज़ योर. ठीक है, इस तरह से नेम 2. तो व्हाट आई विल डू राइट नाउ इज़ कि मैं दोनों को प्रिंट करूँगी. राइट प्रिंट, लेट मी अनकमेंट दिस. ठीक है, प्रिंट पहले हम प्रिंट नेम 1 प्रिंट करेंगे, फिर बाद में नेम 2 प्रिंट करेंगे. ये देखिए मुझे ऑलरेडी प्रेडिक्शन दे रहा है. ठीक है, पहले अब मुझसे इनपुट मांगा है, तो आई राइट माई ओन नेम. माई नेम इज तहनियत. मेरे फ्रेंड का नाम क्या है? राइट आयशा. ठीक है, और फिर इसने क्या किया, वंस इट हैज़ टेकन दी इनपुट्स, ये फिर आउटपुट कर रहा है जो दोनों नेम्स मैंने कंप्यूटर को दिए थे. तो कंप्यूटर इज एक्चुअली स्टोरिंग दीज इनपुट्स. हमने जो इनपुट्स दी थी इन वेरिएबल्स के अंदर, नेम 1 नेम 2 में, इसलिए वो सक्सेसफुली प्रिंट आउट कर सका इन सारी चीज़ों को. ठीक है, तो दैट इज़ हाउ वेरिएबल्स वर्क. ठीक है, वेरिएबल्स आर वेरी सिंपल. आप बार बार जो चेंज भी कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस मैं एक और दिखाती हूँ. अभी मैंने क्या किया, दोनों लाइन्स में पहला वाला लाइन जो है यूज़र इनपुट होगा, नेम 1 में स्टोर हो जाएगा. सॉरी, फिर सेकंड टाइम जो उसे इनपुट मांगेगा वो भी नेम 1 में स्टोर हो जाएगा. तो जो पुरानी वैल्यू होती है वो डिलीट हो जाएगी. ठीक है, उसको ओवरराइट कर लेगा. तो लेट्स ट्राई दिस आउट. यू कैन सी व्हाट हैपेंस. सबसे पहला मुझे इनपुट मांगता है, राइट तहनियत. ठीक है, देन इट आस्क्स मी माय फ्रेंड्स नेम, सो राइट आयशा. और फिर मैंने सेकंड लाइन नंबर 10 में मैंने कहा कि इट हैज़ टू प्रिंट आउट नेम 1 की जो भी कंटेंट है, जो भी इसकी वैल्यू है, प्रिंट आउट करना है. तो अगर मैं जब आयशा इसको सबमिट कर दूँ तो ये प्रिंट आउट करेगा आयशा. पुरानी वाली जो वैल्यू थी वो उसने ओवरराइट की, उसने डिलीट कर लिया. तो इस तरह से आप उसको मतलब पुरानी वैल्यूज़ वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं आसानी के साथ. दैट्स बेसिकली हाउ इट वर्क्स. ठीक है, यस. तो लेट्स डू समथिंग फन. ठीक है, हम एक और चीज़ ट्राई करते हैं. तो बेसिकली आई वांट कि हमारा जब यूज़र बंदा अपना नाम दे हमें, राइट, आई वांट कि हमारा जो कंप्यूटर है तो उसे मुझे ग्रीट करे, सही तरह से फ्रेंडली तरीके से ग्रीट करे. तो दिस इज हाउ आई डू इट. ठीक है, मैं लिखूँगी डबल कोट्स हेलो कॉमा और फिर प्लस हम लिखेंगे नेम 1. तो व्हाट हैपेंस इज, टर्मिनल में लिखती हूँ नाम, इट सेज हेलो तहनियत. वाई, क्योंकि प्रिंट में मैंने लिखा कि भी पहले हेलो प्रिंट करो फिर मेरा नाम प्रिंट करो. अच्छा, ये हाउ डज दिस पर्सन वर्क, ये जो है ना एक्सप्लेनेशन ये किस तरह से काम करता है, वी विल लर्न आगे जाकर. ठीक है, तो अभी फिलहाल दिस इज दी मतलब आइडिया बिहाइंड क्या कहते हैं प्रिंटिंग. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन. ठीक है, we'll be going pretty slow. ठीक है, हम तो कैच ऑन करते हैं.
Okay. Next thing we'll do is variables. Okay, variables. Sorry, variables only कर लिया, but let's talk about another cool thing we can do with variables. Okay, this is called swapping variables. Let's go here. अभी मैं क्या कर रही थी कि x equals swapping वाला काम पहले बाद में करेंगे, पहले एक चीज़ लगाएं. अभी मैं ये कर रही हूँ कि x equals 2, then दूसरी लाइन में y equals 4. There is a simpler method to writing this. वो है ये भी इस तरह करते हैं a b मतलब a कॉमा b इक्वल्स 2 and 4. तो वो रिस्पेक्टिवली 2 को a में स्टोर कर देगा, 4 को b में स्टोर कर देगा, जिस सीक्वेंस में आ रहा है. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अनदर मेथड ऑफ असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल्स. अगर मैं इसको प्रिंट कर दूँ a प्रिंट b, व्हाट विल यू सी. ठीक है, 2 and 4. ठीक है, तो इस तरह से भी आप वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं वैल्यूज. अब बात आती है स्वैपिंग उनकी वैल्यूज. लेट्स से मैं चाहती हूँ कि b के पास a की वैल्यू आ जाए और a के पास b की वैल्यू आ जाए. ठीक है, इसका सिंपल तरीका है स्वैपिंग करने का. आप ये लिखें a कॉमा b लिखें इज इक्वल टू b कॉमा a. अब प्रिंट करते हैं a, प्रिंट करते हैं b. व्हाट शुड हैपन? आइडियली क्या होना चाहिए अभी फिलहाल? ठीक है, पुरानी वैल्यू थी ना, ओल्ड वैल्यूज थी a इक्वल्स 2 b इक्वल्स 4, राइट. यहाँ पे क्योंकि हमने स्वैप कर लिया तो होना चाहिए a इक्वल्स 4 b इक्वल्स 2. आइडियली ये होना चाहिए. तो मैं जब प्रिंट आउट करूँ, इंस्टेड ऑफ 2 and 4 आए, आई वॉन्ट 4 and 2 आए. ठीक है, लेट्स प्रिंट दिस. यही हुआ. ठीक है, तो इस तरह से हम स्वैपिंग करते हैं. वी स्वैप variables. So that's kind of a cool thing you can do with Python. Okay. Again, this sort of thing is not possible with a lot of programming languages. Python में ये ऐसी टाइप की cool चीज़ें हैं assigning करने के लिए, shortcuts जो होते हैं वो हमारी life easier करते हैं. तो yeah, this वैसे मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ. Okay, so now we'll talk about Python को calculator के तौर पे किस तरह use करते हैं. So, of course, Python, like many programming languages, you can use it for as a calculator. You can do calculations with it. बहुत सारे mathematicians and engineers also use Python to do मतलब complicated calculations. ठीक है, for instance, आपके पास जैसे ये example है, engineers करते हैं finite element analysis जिसे कहते हैं. ठीक है, so this that involves a lot of calculations, a lot of work. And बजाय कि वो हाथ से सारा कुछ लिखें, they are able to do it quicker with Python. Okay? तो अभी इस सेशन में of course we're not going to do very high level stuff. No. We're going to do basic arithmetic and basic division वगैरह इसी तरह की चीज़ें करेंगे. Yeah, so simple math operations हम करेंगे. I'll demo some of them in front of you guys. Yeah, so let's try this out. Okay, तो ये हमारी स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं वेरियस, इनको कहते हैं ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. तो ये सिंबल्स हैं, दे अलाउ अस टू डू, ये सिंबल्स होते हैं, दे अलाउ अस टू डू स्पेसिफिक अरिथमेटिक ऑपरेशन. अगर प्लस साइन है मैं एडिशन कर सकती हूँ, माइनस साइन है तो मैं सब्ट्रैक्शन कर सकती हूँ, एंड सो ऑन. नाउ हियर्स टू इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट आई वांट टू डिस्कस. ठीक है, पाइथन में जो हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं तो आमतौर पे आपके पास डेसिमल पॉइंट्स आ जाते हैं. ठीक है, बट हमारे पास एक और भी अवेलेबिलिटी है कि हम इंटीजर डिवीजन करें. मतलब कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग सम नंबर विद डेसिमल्स वी गेट द राउंडेड नंबर. तो आई डेमो दैट. ठीक है, वो ज़्यादा आसान होगा. एंड ऑफ कोर्स एक्सपोनेंट ढूंढना, मॉड्यूलस फाइंड करना. आई विल एक्सप्लेन मॉड्यूलस इन अ बिट. पहले हम थोड़ा सा बेसिक हम सब्ट्रैक्शन एडिशन कर लेते हैं. तो जैसे x इक्वल्स 2 y इक्वल्स 4, अगर प्रिंट करें x प्लस y, ठीक है, मतलब प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट फंक्शन के अंदर भी आप सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो यू शुड गेट 6, राइट. 2 + 4 = 6. इसी तरह से अगर मैं सब्ट्रैक्शन कर लूँ -2, ठीक है,
and then we'll do multiplication. 4 times 2 क्या होता है? 8 होता है, right? In this case, let me try this. ठीक है, हम करते हैं y divided by x. तो मतलब 4 divided by 2 must be 2, right? 2.0. ठीक है, अगर मैं ये करूँ y को 5 कर देते हैं, 5 divided by 2 करते हैं, तो मेरे पास 2.5 आ जाता है. तो ये जो इंटीजर डिवीजन करना हो, अगर मैं डबल फॉरवर्ड स्लैश करूँ तो यू गेट 2. ठीक है, तो आपके पास बेसिकली यू गेट द इंटीजर ऑफ दिस मतलब डिवीजन. ठीक है, दैट इज़ अनदर ऑपरेटर. फिर खाली क्या रह जाता है, क्या एक्सपोनेंट ढूंढना रह जाता है. तो y का स्क्वायर क्या होता है? y स्क्वायर मतलब सॉरी 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, राइट? तो अभी y इज़ 5, x इज़ 2. तो अगर मैं इस तरह करूँ स्टार x, right? So I'll be finding the square of y. Okay, y x is 2. इस तरह से 25 हो जाता है. इस तरह से अगर मैं x कर दूँ x times y, x मतलब 2 to the power of 5, I get 32. ठीक है, तो ये एक्सपोनेंट भी फाइंड करना आसान है. rather than you taking out your calculator सारा कुछ कैलकुलेट करें, आप ये सारा कुछ जो आप सारी कैलकुलेशन हैं वो आप पाइथन में आसानी के साथ कर सकते हैं. द लास्ट थिंग दैट इज़ लेफ्ट जो कि मुझे एक्सप्लेन करना है वो है मॉड्यूलस. फाइंडिंग द मॉड्यूलस. मॉड्यूलस इज़ बेसिकली व्हाट वी डू विद मॉड्यूलस. ये वाला सिंपल जो है, वी फाइंड द रिमाइंडर. आपने कोई डिवीजन किया है, जो डिवीजन का जो रिमाइंडर है वो प्रिंट आउट करना है. तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल 25 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 25 इज़ डिविजिबल बाई 5, कोई रिमाइंडर्स नहीं होंगे, तो आपके पास 0 आना चाहिए. और अगर आपके पास यूर डूइंग मतलब 25 divided by 4, 25 is not divisible by 4, आपके पास एक रिमाइंडर होगा ऑफ 1. तो लेट्स ट्राई दिस आउट. ठीक है, वी हैड 5 and then 25. So if I do this y परसेंटेज वाला सिंबल मॉड्यूलस, तो अभी आना चाहिए हमारे पास 0 आना चाहिए. ठीक है, बिकॉज ये डिविजिबल है. 25 इज डिविजिबल बाय 5. तो मैं ये करूँ जो कि एग्जाम्पल में दिखाया, आपके पास 1 होना चाहिए क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे 1 हो जाता है. दिस इज हाउ यू डू मॉड्यूलस. ठीक है, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. सीक्वेंस मैटर्स. जैसे हम कहते हैं ना प्रेसिडेंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, हमने स्कूल में भी सीखा था. हमने शायद आपने बॉट मैथ्स का सीखा हो या पेम डैश का सीखे हो. दोनों चीज़ें सेम ही हैं. बेसिकली ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन होते हैं क्योंकि प्रेसिडेंस क्या है, मतलब कि ब्रैकेट जो भी चीज़ ब्रैकेट के अंदर होगी ऑपरेशन पहले वो होगी, जो एक्सपोनेंट वाली चीज़ होगी वो बाद में होगी. तो मल्टीप्लिकेशन और डिविजन की ज़्यादा प्रायोरिटी होगी कंपेयर टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. वैसे भी हम कैलकुलेटर्स में भी जब हम करते हैं तो हमें भी ख्याल रखते हैं कि ऑफ कोर्स द वे यू राइट समथिंग, द ऑर्डर इन विच यू राइट समथिंग अफेक्ट्स द आउटपुट. ठीक है, तो टू बी ऑन द सेफ साइड चीज़ों के जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो यू शुड राइट ए या यू शुड मेक श्योर कि आप पैरेंथेसिस यूज़ करें. तो लेट मी शो यू एन एग्जांपल. ठीक है, a इज इक्वल टू 5, b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू -10. ठीक है, और x इज इक्वल टू a प्लस b टाइम्स c. तो मेरा x वैल्यू क्या होगी? ठीक है, लेट्स प्रिंट दिस आउट. यू डोंट नीड टू कैलकुलेट इट, पाइथन हमारे कैलकुलेट कर लेगा. एक्सक्यूज मी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. Okay, sorry about that. Okay, so let's go back to our thing. So basically अगर मैं इसको प्रिंट आउट करूँ, I get -15. ठीक है, a plus b times c. ठीक है, so that's why I get -15. b times c क्या होता है? 20 था, राइट? -20 था. अगर मैंने ये किया, पैरेंथेसिस मैंने डाले हो a plus b पे, then of course मेरा आउटपुट ही कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है, -70 हो जाता है. तो इस चीज़ का आपने बड़ा ख्याल रखना है कि पैरेंथेसिस यू नो लाइक जस्ट टू मेक श्योर कि आपके गलत आंसर ना आ जाए, मिस कैलकुलेशन कोई ना हो जाए.
you have to use parentheses and you have to take care of the order in which you apply the operators. Okay. Yeah. Okay. Now let's do another thing. Next thing हम करते हैं. तो अभी हमने फिलहाल we saw integers, we saw sorry we didn't I didn't really mention this sorry. तो अभी हम क्या करते हैं बात करते हैं कि Python में दो तरीके होते हैं to represent numbers. You have integers and you have floats. Floats वो होते हैं numbers with decimal points and integers is integers. ठीक है, दो तरीके होते हैं to define them. तो अगर आप चेक करना चाहें कि which one is it, ठीक है, तो very simple सा तरीका होता है. Let's go to our file. A, let's say A is 5, ठीक है, और B को कहते हैं 5.0. तो अगर मैं प्रिंट करूँ A, टाइप लिखेंगे और ब्रैकेट A, ठीक है, तो ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे. इफ आई प्रिंट दिस, मेरे पास लिखा है क्लास इंटीजर, इंट. इफ आई पुट दिस, उनके B के अंदर डेसिमल पॉइंट है, आई विल गेट फ्लोट. ठीक है, तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है, राइट. यू शुड रिमेंबर कि मतलब इफ़ यू पुट ट्रेलिंग जीरोस दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू अ फ्लोट. तो दिस इज समथिंग मतलब जिसका ख्याल रखना. लेट्स से अब देखने में वी नो, हमें तो पता है कि दोनों सेम नंबर्स हैं, राइट. लेट्स से अगर बी को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं इंटीजर में, हाउ विल यू डू दिस. तरीका ये होता है, हम करते हैं कुछ चीज़ होती है इसका नाम है कास्टिंग करेंगे. तो मैं यहाँ पे इंटीजर ब्रैकेट 5.0 लिखूँगी, तो जो भी सब कुछ इनसाइड होगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेगा. So let me print once again type B. You should get integer. Yeah, you get integer. ये मतलब होता है तरीका. And of course अगर मैं A को A तो ऑलरेडी इंटीजर है, अगर मैं उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहूँ, फ्लोट ब्रैकेट 5 and let me change this. You should be getting float. ठीक है, आपको टाइप ही बदल गया वेरिएबल का. दैट्स हाउ यू डू कास्टिंग. तो इस चीज़ का मेरा ख्याल रखना है. आगे जाके वी विल सी अनदर एग्जांपल ऑफ कास्टिंग व्हिच इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन दिस. ओके सो नाउ विल टॉक अबाउट एक और डेटा टाइप है, एक और मेथड तरीका है टू स्टोर इंफॉर्मेशन वेरिएबल्स में, और उसको कहते हैं स्ट्रिंग्स. जो भी आपका टेक्स्ट फॉर्मेट होता है वो हम स्ट्रिंग्स में स्टोर करते हैं. तो फॉर इंस्टेंस वही सिंपल तरीका है, आप A इक्वल्स डबल कोट्स, तो जो भी डबल कोट्स के अंदर होगा वो टेक्स्ट वो स्ट्रिंग होगा आपका. ठीक है, एंड इट कैन बी वन वर्ड, इट कैन बी एन एंटायर सेंटेंस. तो इस तरह से तो उनको प्रिंट करते हैं, ट्राई करते हैं. ओके लेट्स गो. क्या तो A इज इक्वल टू लेट्स से पाकिस्तान, ठीक है. B is equal to South Asia because we are in South Asia, right? And if I print this, तो आप ही मुझे सिर्फ वेरिएबल लिखना पड़ेगा. ठीक है, I don't have to write डबल कोट्स, मुझे नहीं लिखना पड़ेगा. तो इस तरह से पाकिस्तान डायरेक्टली आ गया. तो ये तरीका होता है टू मतलब राइट इट इन अ वेरिएबल. ऑलरेडी हम कर चुके हैं आई बिलीव. अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ये पहले भी हम कर चुके हैं बट आई हैड नॉट एक्सप्लेन्ड इट. अब मैं एक्सप्लेन करूँगी. तो एक चीज़ होती है कि यू कैन ऐड टू स्ट्रिंग्स टुगेदर. ठीक है, टू स्ट्रिंग्स टुगेदर. तो जैसे था पाकिस्तान साउथ एशिया को मैं दोनों को इकट्ठा करना चाहूँ, इट इज़ पॉसिबल. एंड आप सीधा एक प्लस साइन के साथ आप एक दो स्ट्रिंग्स को इकट्ठा बना सकते हैं सेंटेंस बनाने के लिए. तो लेट्स गो बैक. ठीक है, इफ़ आई राइट दिस, ठीक है, A प्लस बी, ठीक है, दो हमें पास वेरिएबल है, तो क्या होगा कि पाकिस्तान साउथ एशिया दोनों इकट्ठे आ जाते हैं, दोनों इकट्ठा प्रिंट हो जाते हैं. अगर मैं पाकिस्तान के बाद एक स्पेस डाल दूँ तो इस तरह से हो जाता है. तो व्हाट हैपेंस, ये दोनों एक वो बन गए, एक स्ट्रिंग बन गए बिकॉज आई एडेड देम टुगेदर. तो आई कैन डू दिस इज वेल. आई कैन डू B equals A plus B. ठीक है, एंड इफ आई डू दिस B हम प्रिंट करते हैं. Oh, this is wrong thing. Sorry. Okay, yeah, same thing. B एक और वेरिएबल में भी सारा कुछ कर सकते हैं, मतलब कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं. So
this is the word concatenation हम करते हैं. We add two strings together. And जो हमने मैं example मैंने दिया था, right? When I said when I had said कि hello plus name, मतलब computer was greeting me as hello Tahniat. That is also an example of concatenation. ठीक है, तो वही चीज़ हम कर रहे थे. So it was name, input, what is your name, ठीक है, और फिर हमने क्या किया था, print hello, फिर plus डाला, and then we had written my name. ठीक है, स्पेस डालना मुझे, स्पेस भी डालें वरना वो इकट्ठा हो जाता है. Let's run this. Tahniat, जिसने hello Tahniat किया. That was string concatenation. मैंने पहले explain नहीं किया था, but now I'm explaining. अच्छा, एक और interesting thing कर सकते हैं, इसके साथ हम play around कर सकते हैं. And of course, this makes it look like अगर computer की ना अपना brain है, like it has its life of its own. What we'll do next is कि हम करेंगे कि हमारा कंप्यूटर से पूछता है कि आप कौन से साल में पैदा हुए थे, and it will tell us कि हम कौन से कितने साल के हैं. ठीक है, तो let's make another input का हम करते हैं instance. Basically हम कहेंगे which year were you born. ठीक है, like this space and sorry age नहीं होना चाहिए, year होना चाहिए. Year, ठीक है, year हम मांग रहे हैं. And what we're supposed to do is कि 2022 minus year होना चाहिए. ठीक है, मतलब 2022 and then of course minus the year you were born will give you the current age बताएगा, right? तो अगर मैं प्रिंट करूँगी मुझे फ़िलहाल अभी यहाँ तक तो मुझे करने देगा रन. ठीक है, मतलब ये यहाँ तक करने देगा रन. ठीक है, तो ऐसे 1995 like error throw करेगा. Why is that? Well, the thing is कि जो मुझे year जो है मेरा variable, it is storing a string. और यहाँ पे क्या कोशिश कर रही हूँ कि मैं integer से string में subtract करूँ. Doesn't make sense. It will never happen. ठीक है, इस string को मुझे convert करना है into an integer ताकि मैं एक calculation कर सकूँ. So that's why I'm going to be using. यहाँ पे भी मैं casting कर रही हूँ, string को cast कर रही हूँ to integer. And then this thing will work. ठीक है, what is your name आ गया, Tahniat लिख दिया. Which year were you born in? 1995. And then it gives me my age, 27. This is kind of a cool thing to demo in front of your friends. So of course, if you're a beginner, I'm sure it looks like rocket science आप कर रहे हैं. But again, you know very well. Okay, of course, this is simple. जो हमने method अभी मैं explain किया है, वो working principle ये है, which allows us to make this happen. Okay, so casting हमने कर ली. Okay, yeah, another thing, I forgot to mention this. तो अभी हमने string को integer में convert किया, right? But you can also convert a number to a string. Let's try this out. Yeah. ठीक है, अच्छा ये मैंने जो अभी काम किया है, मैंने इसको select करके toggle line कमेंट किया, तो सारी इकट्ठी कमेंट हो गई, मतलब they will not be run. मैं लिखती हूँ a equals to 12, b equals 24. ठीक है, अगर मैं print a plus b लिखूँगी तो क्या होगा, इशू ये होगा कि दोनों 12 plus 24 हो जाएगा, एडिशन हो जाएगी. अगर मैं ये करूँ str मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें, str ब्रैकेट b ब्रैकेट में बंद करें फिर से, तो क्या होगा 12 24. So it is printing it as a string, basically 1 2 2 4 string बन जाता है सारा. So this is a cool thing that you can do with casting as well. मतलब ये दिखाना चाहिए, इंटीजर से भी आप कास्ट कर सकते हैं और स्ट्रिंग टू इंटीजर भी हो सकता है, इंटीजर टू स्ट्रिंग भी हो सकता है. Okay, now let's talk about another method of printing out stuff. जिसको कहते हैं string interpolation. Okay, sorry, excuse me. So what we do next is we have another, instead of us writing के भी प्लस साइन हम लगाते थे, concatenate करते थे, तो कोई चीज़ हम टाइप करते थे, we can use the format module to
to input our variables string के अंदर. तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब integer हो गया, float हो गया, string हो गया. Let's try this. यही sentence हम उसको print करेंगे. Temperature city Multan. So let me just copy this entire thing and इसको मैं यहाँ type करती हूँ. So what is going on? पहले मैं एक temperature variable बनाया जिसमें 14 लिख दिया. शहर का नाम लिखा मुल्तान सिटी, राइट. और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट लिखती हूँ. तो कर्ली ब्रैकेट मीन्स कि आप में कभी तो कह रहे हैं पाइथन कोड मेरा कह रहा है कि इसके अंदर इस पोजीशन में यहाँ पे कुछ आपने इनपुट करना होगा, यहाँ पे आपने प्रिंट करना है, ठीक है. एंड दो जगहों पे हमने करना है. द टेम्परेचर इन डैश इज डैश, ठीक है. फिर आप लिखते हैं डबल कोट करने बंद करने के बाद आपने डॉट लिखना है, फुल स्टॉप लिखना है, एंड देन यू राइट फॉर्मेट. तो फॉर्मेट के अंदर द सीक्वेंस इन विच यू राइट द वेरिएबल्स, ठीक है, उस सीक्वेंस में ही ये प्रिंट होगा. तो यहाँ पे पहले सिटी पहले लिखा ब्रैकेट के अंदर. तो सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट में सिटी वाला वेरिएबल प्रिंट होगा, मतलब सिटी क्या थी, मुल्तान. तो यहाँ पे लिखा होगा टेम्परेचर इन मुल्तान. और सेकंड चीज़ ये टेम्परेचर लिखा है, सेकंड मेरी वेरिएबल है जो मैं इनपुट कर रही हूँ, तो यहाँ पे टेम्परेचर लिखा है. लेट्स रन दिस. यही चीज़ हुई जो मैंने मेंशन किया. टेम्परेचर मुल्तान इज़ 14. So you have to be very very careful about the sequence in which you write this. अगर मैंने टेम्परेचर पहले लिख दिया था और सिटी बाद में लिखा होता तो ये सही है, मेरा आउटपुट आता है. दैट डज नॉट मेक सेंस, ठीक है. तो इसलिए आपको बड़ा ख्याल रखना है कि आप किस सीक्वेंस में लिख रहे हैं. ये एक और तरीका है फॉर अस टू फॉर्मेट और स्ट्रिंग. मतलब कोर्स आपने इंपॉर्टेंट आपके पास डिटेल्स हैं, चीज़ चेंज हो सकती है. मतलब बाद में एग्जाम्पल कोई बंदा कह दे लाहौर में 12 डिग्रीज है, ठीक है. तो इसका ये फ़ायदा होता है ये आसानी से आप चेंज कर सकते हैं. आपने सिर्फ ये चीज़ चेंज करनी है, आपने पूरा अलग से प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ता. या इट रिड्यूसेस योर एफर्ट, ठीक है. तो ये तरीका है. या नेक्स्ट थिंग आई वांट टू शो इज़ कि ऑफ कोर्स स्ट्रिंग के साथ बहुत सारी चीज़ें आप इंफॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ. एंड दिस इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल ऑफ कोर्स. फॉर इंस्टेंस अगर आप मशीन लर्निंग की एक होती है फील्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP जिसे कहते हैं, जहाँ पे आपका कंप्यूटर का काम होता है कि आपका जो AI है वो ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सके. और उसको हम ट्रेन करते हैं कि इट स्टार्ट्स टू ट्रांसलेट स्टफ या इट स्टार्ट्स टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड कम्युनिकेट विद अस लाइक अ ह्यूमन बीइंग वुड. तो उनमें ये काम बड़े आते हैं. ये जो फंक्शंस हैं हम बहुत यूज़ करते हैं. फॉर इंस्टेंस आपने पढ़ना हो कि भी कितने कैरेक्टर्स हैं एक लफ्ज़ में. So let me write this. len है, ठीक है. दिस इज द फंक्शन len. len मतलब लेंथ जो भी आप टाइप रखेंगे इसमें आपको बताएगा कितने कैरेक्टर्स हैं उस स्ट्रिंग में. तो राइट नाउ आई रोट दिस रैंडम स्ट्रिंग फुल पीपल ओनली. और मैं खुद काउंट करके बता सकती हूँ कि कितने 4 + 3 7 8 9 10 11 12 13 14 कैरेक्टर्स होने चाहिए. अगर मैं इसको प्रिंट करूँ लेंथ के साथ तो वो भी काउंट करते 14 कैरेक्टर्स हैं. इस तरह से यू कैन मतलब राइट एक इंटायर सेंटेंस भी लिख सकते हैं कि जैसे मैंने कहा टेम्परेचर इन मुल्तान इज़ 14 डिग्रीज. वेदर नॉट दैट इज़ ट्रू आई एम नॉट श्योर, ठीक है, मुझे नहीं पता राइट नाउ कितने डिग्रीज हैं. बट वैसे फॉर द सेक ऑफ दिस एग्जाम्पल आई एम जस्ट सेइंग कि ये है. एंड इट काउंट्स द इंटायर थिंग, राइट. यहाँ पे अपने ख्याल रखना होता है स्ट्रिंग्स में क्या होता है. It also counts the white spaces, ठीक है. So those are also important when it comes to मतलब वो भी काउंट किए जाते हैं. So it's not just the characters, it's also these things, ठीक है. And also आपका कोई अपने फुल स्टॉप लगाया, कोई अपने मतलब ये लगाया फॉर इंस्टेंस एक्सक्लेमेशन पॉइंट लगा दिए 41 हो गए, ठीक है. Those get counted as well. Okay. Let's go back to our slide. Here's an interesting thing that you can do with Python is कि आप जो भी आपने सेंटेंस लिखा है आप उसको completely रिवर्स कर सकते हैं. तो रिवर्स करने का तरीका ये होता है आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करने होते हैं, सेमी कॉलन -1. तो the order in which
the string was written completely उल्टा हो जाता है. Let's try this out. So this is also sometimes useful. मतलब of course अगर आप कोई कर रहे हो, application बना रहे हैं, या कोई game बना रहे हो, for instance, you want to make something look much more creepy, then you can do this. ठीक है, तो ये मैं लिखती हूँ s semicolon semicolon -1 variable name और उसके बाद square brackets. Yeah, just look at this. This is completely reversed. Okay, it sounds like, it looks like nonsense. It doesn't make sense. Yes. This is a way of reversing our strings. एक और चीज़ हम कर सकते हैं with strings is कि हम capitalize कर सकते हैं उनको. So what you do is कि for instance आपके पास ये text है, इसको मैं copy ही कर देती हूँ directly और इसको हम मिटा देते हैं. Everything is in lowercase. तो capitalize dot basically हमने variable dot capitalize किया, brackets डाले, empty brackets, अपने brackets के अंदर कुछ नहीं डालना. तो क्या करेगा, सबसे पहला जो कैरेक्टर है उसको कैपिटलाइज कर लेगा. ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक? दिस इज गोइंग टू बी एबल टू, जो अगला सेंटेंस को क्या कैपिटलाइज करेगा या नहीं? नहीं करेगा. व्हाई इज दैट? बिकॉज बेसिकली इट्स ओनली गोइंग टू लुक एट द फर्स्ट स्ट्रिंग के सबसे पहला जो कैरेक्टर है उसको वो मैनिपुलेट करेगा. ये इसका वो होता है तरीका होता है. तो अच्छा, दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं, लेस से कि अगर आपने कैपिटल चीज़ है नहीं, आप चाहते हैं कि सारे ही अपर केस में हो, तो यू कैन यूज अपर. ठीक है, लेट्स गो बैक एंड लेट मी चेंज दिस टू अपर ब्रैकेट्स, खाली ब्रैकेट्स होंगे, लेट्स प्रिंट दिस. ठीक है, तो सारा कुछ, इट इज़ वेरी कोल्ड डे एंड आई एम सो कोल्ड. ठीक है, इट मेक्स अ स्टेटमेंट, इट रीइंफोर्सेस कि काफ़ी ठंडक है. तो ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. बेसिकली जो हम कर रहे हैं वो है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन. आई एम मैनिपुलेटिंग द स्ट्रिंग. एंड इसी तरह और भी फंक्शन हैं स्ट्रिंग्स के साथ. आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू ऑल ऑफ देम. या लोअर केस आप कर सकते हैं, लोअर केस विद केस फोल्ड कर सकते हैं. लेट मी शो यू अनदर थिंग. ये वाला इसको डेमो करती हूँ. यू कैन डेमो स्टफ, यू कैन डेमो, सॉरी यू कैन रिप्लेस वर्ड्स. तो आपके पास सेंटेंस है, आप सेंटेंस में एक लफ्ज़ चेंज करना चाहते हैं, इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो यू कैन यूज दिस. ठीक है, लाइक टेक्स्ट डॉट रिप्लेस एंड देन जो भी अल्फाज है वो आप बता सकते हैं. लेट्स डू दिस, लेट्स यूज दिस रिप्लेस. ठीक है, कोल्ड टू वार्म. ठीक है, नाउ हमारे पास दो केसेस ऑफ कोल्ड है. एक तो यहाँ पे कोल्ड आ रहा है, यहाँ पे कोल्ड आ रहा है. ठीक है, तो ये दोनों को रिप्लेस करना चाहिए. इसको या इसको रिप्लेस कर दिया दोनों को. इट इज़ अ वेरी वार्म डे, आई एम सो वार्म. ठीक है, तो इस तरह से यू कैन मैनिपुलेट द स्ट्रिंग एंड ऑफ कोर्स चेंज द एंटायर मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. ये तरीका होता है. एंड ऑफ कोर्स अगर दिस वन थिंग इज particularly useful in when you're working with a lot of data in machine learning AI में. तो as I said, for example, डेटा जब आता है आपके पास 100% परफेक्ट नहीं आता, 100% परफेक्टली फॉर्मेटेड नहीं होता, उसकी क्वालिटी ऊपर नीचे हो सकती है, चेंज हो सकती है, कोई एरर्स होते हैं, कोई स्पेलिंग्स होती हैं, एंड समटाइम्स रैंडम ब्लैंक स्पेसेस होते हैं जहाँ पे होने नहीं चाहिए. तो दिस फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस है, राइट, इन द बिगिनिंग दिस लॉट ऑफ ट्रेलिंग ब्लैंक स्पेसेस. उनको रिमूव करना हो तो इसका ये तरीका होता है, यू हैव ए टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप ऑप्शन. ठीक है, लेट्स से मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्पेस डाल दिया. अगर मैं अभी प्रिंट करूँ अपने टेक्स्ट को, तो कंप्यूटर विल बी रीडिंग ऑल द स्पेसेस, वो सारे प्रिंट को एक्नॉलेज करेगा. ठीक है, तो दिस इज नो गुड ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर मैं कोई बहुत सारी हाई लेवल स्टफ कर रही हूँ एक कोड के साथ, तो आई डोंट वांट दीज थिंग्स अननेसेसरी. मैं नहीं चाहती स्पेसेस हो. तो टेक्स्ट और स्ट्रिप के साथ क्या होता है, इट रिमूव्स ऑल ऑफ देम. हमारे पास एक प्रॉपर मीनिंगफुल हमारे पास एक डेटा आ जाता है. So that is one way of working with removing spaces. Okay. So the next thing we'll do is, excuse me, sorry.
Yeah, once again, guys, if you can't hear me, मेरी आवाज़ सही तरह क्लियर नहीं आ रही, या कोई इश्यूज हो रहे हैं स्क्रीन के साथ, या टेक्स्ट सही तरह से क्लियर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब कोई चीज़ कट ऑफ हो रही है, तो चैट में आप लिख सकते हैं, ठीक है. ओके, तो विल कंटिन्यू. स्ट्रिंग्स के साथ हम काम करते हैं अभी. स्ट्रिंग्स एंड एस्केप सीक्वेंसेस. तो yeah, we've covered a lot of things with strings, ठीक है, but one thing I will mention is कि आप string के अंदर भी आप you can format stuff, ठीक है. Let me go back. इसको remove कर लेते हैं स्पेस को. Let's just say कि मैं चाहती हूँ ये जो particular दो sentences है ना एक string में, मैं चाहती हूँ अगली लाइन पे आए, तो मैं यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश ये डाल दूँगी और उसको बिल्कुल साथ ही कनेक्ट कर दूँगी. If I print this, what happens? ठीक है, टेक्स्ट को नॉर्मल कर देते हैं और प्रिंट करते हैं, तो द सेकंड लाइन गेट्स प्रिंटेड ऑन द मतलब नेक्स्ट लाइन. सेकंड सेंटेंस गेट्स प्रिंटेड ऑन द नेक्स्ट लाइन. क्यों? क्योंकि मैंने बैकवर्ड स्लैश एन डाला, तो एवरीथिंग दैट कम्स आफ्टर दिस इज मतलब कम्स ऑन द नेक्स्ट लाइन. ठीक है, अगर मैंने दो डाले होते हैं तो दो स्पेसेस होते हैं, ठीक है. तो दिस इज अनदर वे ऑफ फॉर्मेटिंग. इसी तरह से अगर मैं ये कर दूँ, बैक स्पेस कर दूँ दो दफ़ा, ठीक है, इट्स वेरी कोल्ड डे, तो ये दो दफ़ा इसने मतलब पीछे बैक स्पेस करते करते तो रेस कर दिया. दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग कोल्ड DAI एंड सो फोर्थ. ठीक है, तो दैट्स अनदर वे ऑफ फॉर्मेटिंग. फिर एक और चीज़ होती है विद escape sequences हमारे पास होता है, इसका नाम है carriage return. Carriage return, what it does is very weird. Okay, it's a very weird thing. So basically, anything that comes after this backward slash R, it goes at the front of the thing of the sentence of the string. और फिर उनको रिप्लेस कर दो, जो पुरानी चीज़ें थी उनको रिप्लेस कर दो. तो बेसिकली कोल्ड डे है वो फ्रंट पे आ जाएगा, ठीक है, और इंक्लूडिंग ऑल द स्पेस मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8. ये यहाँ तक सारा कुछ मिट जाएगा बिकॉज वी आर रिप्लेसिंग इट कोल्ड डे. ये कर्सर को हिला देता है कैरेज रिटर्न थिंग. दिस कैन बी यूजफुल. अपने बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकती हैं. लेट मी रिमूव द सेकंड सेंटेंस और मैं दिखाती हूँ. तो कोल्ड डे था, यहाँ पे कैरेज रिटर्न डालते हैं, ठीक है. तो इसने पूरा कुछ सारा कुछ रिप्लेस कर लेगा. लाना भी इसका या तो क्योंकि मैंने यहाँ पे जस्ट रिमूव द फुल स्टॉप, ठीक है. तो कोल्ड डे वेरी हो गया क्योंकि ऑफ कोर्स ये सारा कुछ रिप्लेस्ड ऑल ऑफ दिस, ठीक है. दैट्स हाउ इट वर्क्स कैरेज रिटर्न का. ऑफ कोर्स बहुत सारी एस्केप सीक्वेंसेस होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, इनसे ज़्यादा और भी एग्जिस्ट करती हैं. आई हैव ओनली मेंशन जो कि लाइक टॉप पे हैं. टैब भी ऑप्शन होता है, यू कैन पुट टैब ऑप्शन को ज़्यादा ऐड करता है वाइट स्पेसेस इस तरह से. So I'll talk about this thing. String indexing मैं मेंशन करूँगी because it is relevant. एक और चीज़ के साथ भी relevant है. So let's just say I have two words, ठीक है, refreshing. Let's just say मैं चाहती हूँ कि मैंने ना एक पहला वाला कैरेक्टर मैंने सिलेक्ट करना है. तो आप स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं और 0 लिखते हैं, ठीक है. तो मेरे पास पहला वाला कैरेक्टर सिलेक्ट हो जाता है. तो क्यों होता है? वाई इज इट कि 0 के बाद वो सिलेक्ट होता है? क्योंकि आपके जो भी सीक्वेंस है नंबर्स की, मतलब पोजीशन है, इंडेक्स है आपके हर कैरेक्टर का, वो 0 से स्टार्ट होता है. 0 1 2 3. अगर मैं 1 लिखूँगी तो ये 1 पूरा ई मिलेगा. अगर मैं 10 लिखूँगी तो टी आ जाएगा, ठीक है. अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूँ, 11 लिखूँ, तो मेरे पास टी आ जाएगा. इस तरह से यू हैव टू बी, मतलब दिस इज हाउ यू सेलेक्ट अ कैरेक्टर. अच्छा, एक और चीज़ भी होती है विद स्ट्रिंग इज यू कैन डू स्लाइसिंग. तो आप चाहते हैं कि वो खास कंपोनेंट पोर्शन ऑफ माई स्ट्रिंग वो सिलेक्ट हो जाए, ठीक है. तो लेट्स ट्राई दिस. तो अगर मैं ये करूँ
11 से 11 ऑनवर्ड्स टी था, राइट। 11 के बाद मैं सेमी कॉलन डालता हूँ तो 11th पोजीशन पे के बाद सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे, उनके स्लाइस कर लेंगे तो हमारे पास टी आ जाता है, ठीक है। अगर मैं ये करूँ 2 से लेकर 7 तक करूँ, ठीक है, तो फ्रेश सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस 0 1 2 आई हैव टू ओपन दिस 2 to 7 मैंने किया ना, 7th वाला कैरेक्टर was not included। तो क्या होता है कि when you write you have to, जब आप सेमी कॉलन से पहले चीज़ लिखते हैं वो चीज़ इंक्लूड होती है, 7th सेमी कॉलन के बाद जो कैरेक्टर होता है इट्स नॉट इंक्लूडेड। तो बेसिक what we're doing is we're saying कि from the 2nd character up to the 7th character, इसलिए only this portion gets selected, ठीक है। तो दिस इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल इन लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि फर्स्ट जब फर्स्ट डेटा आते हैं समटाइम्स बहुत सारी जम्बल्ड अप होती हैं, इकट्ठा होकर आती हैं, वैसे ख़ास तरीके से फॉर्मेट होती है। तो आपको शायद पता होगा कि भी पोजीशन नंबर 2nd से लेकर 7th तक दिस इज़ द रेलिवेंट स्ट्रिंग जो मुझे चाहिए, जो मैं ढूंढ रहा हूँ, तो इस तरह हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग करते हैं, राइट। एंड ऑफ कोर्स वी हैव अदर तरीके भी हैं, अगर आप कहें ये करें, ठीक है। तो क्या होता है कि फ्रॉम बिगिनिंग अप टू द 5th पोजीशन आपके पास वो आती है, सेलेक्ट हो जाता है चीज़ें। इस तरह से अगर माइनस में करें तो क्या होता है कि लास्ट से लेकर चीज़ों को सिलेक्ट करता है, रिवर्स में चीज़ों को सिलेक्ट करता है, इट्स एक्सक्लूडिंग द लास्ट लेटर्स, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। और इफ़ यू वांट टू इंक्लूड, यू वांट टू डू अनदर थिंग, ऑपोजिट करना चाहते हैं कि सिर्फ आखिरी ही कैरेक्टर हो और बाकी चीज़ें ना हो, देन -1 सेमी कॉलन से पहले आएगा, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लेट मी ट्राई वन थिंग, -3 क्या होगा, -3 के साथ पीस पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, दैट्स हाउ यू डू स्लाइसिंग। तो इट्स वेरी यूजफुल, एज आई सेड, वही मैं मेंशन की थी चीज़ें, आप इससे काफ़ी काम कर सकते हैं। You know what, we skip this and I'll go to operators. अगर टाइम हुआ तो हम आएंगे बाकी वाले Let's talk about operators. Operators, as I said, अभी हमने arithmetic operators देखे थे, plus, minus, division, all of that stuff. But now we'll talk about, फिर से हम डिस्कस करते हैं what do we mean in the context of programming, operators से क्या होता है। जो हम मैथ में देखते हैं operators का, of course ये वाली चीज़ है, it's telling us कि whether or not something is true or false, ठीक है। हम कह सकते हैं कि 3 bigger than 4, no, right, हम कहेंगे false है। तो in the same case प्रोग्रामिंग में भी we use this to set rules, तो we say कि अगर ये फलां चीज़ है तो भी ये false होगी, ठीक है। तो ये हम चेक करते रहते हैं वेरिएबल्स के साथ, और वेरिएबल्स दूसरी एक और वेरिएबल के साथ हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। अगर 3 is smaller than 4, this particular statement is true, right, that makes sense। 3 is equal to 4, अगर मैं ये टाइप करूँगी कंप्यूटर कहेगा नहीं false है, this statement does not make sense। अगर मैं लिखूँ 3 is not equal to 4, then कंप्यूटर कहेगा yes, that makes sense, ठीक है, that is true, ठीक है। yeah, तो what we do is कि बेसिकली जो बीच में जो चीज़ है वो है ऑपरेटर, साइड पे जो चीज़ है, जो नंबर्स हैं, they call them operands। तो they don't have to be numbers के अलावा भी चीज़ें हो सकती हैं, तो इस तरह से मतलब उनको ऑपरेंड कहते हैं। तो ये जो मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ ये सारी कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो वही जो हम लोग चीज़ें दिखाई थी अभी, ग्रेटर, स्मॉलर दैन, इक्वल, नॉट इक्वल टू, दीज आर ऑल ऑपरेटर्स जो कि हम यूज़ कर सकते हैं इन पाइथन, ठीक है। तो थोड़ा सा सिंटैक्स डिफरेंट होता है, अगर आपने इक्वल टू डिनोट करना है तो आपने डबल इक्वल साइन सीखना है, नॉट इक्वल टू करना है तो you have to put the exclamation mark first and then equal sign डालेंगे, फिर greater or less than, that makes sense, greater or equal to, that also makes sense, आपने equal sign डालना होगा राइट साइड पे। तो yeah, let me just show you guys something, basically इसको हम दिखा देते हैं। Let's say a is equal to 40, b is equal to 30, ठीक है। Print b equals to, b is greater than a। Now of course 30 is not bigger than a, right, ये तो हमें पता है,
तो क्या होना चाहिए कि बेसिकली हमें कंप्यूटर कहेगा फॉल्स, तो फॉल्स हमें बताएगा। अगर मैं ये कहूँ कि बी इज इक्वल टू ए, मैं स्टेटमेंट दे रही हूँ बी इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू ए, कंप्यूटर कहेगा फॉल्स, दैट डज नॉट मेक सेंस, दैट इज नॉट ट्रू। अगर मैं सेमी एक्सक्लेमेशन मार्क डालूँ इज इक्वल टू ए, व्हिच मीन्स कि नॉट बी इज नॉट इक्वल टू ए, इट्स गोइंग टू से ट्रू, दैट इज करेक्ट, क्योंकि 30 एंड 40 आर नॉट द सेम। अगर मैं इसको चेंज भी कर दूँ 40-40 कर दूँ तो फॉल्स कहेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स they're not, it's not, this thing is not true. Like I'm not saying कि 40 is, अगर मैं कहूँ 40 is not equal to 40, that statement is incorrect. ठीक है, तो ये हमारे पास है ऑपरेटर्स। या ठीक है, तो वी कैन यूज दिस टू सेट ट्रूज, और आगे जाके हमें समझ आएगा किस तरह से इनको यूज़ करते हैं। देन वी हैव ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करते हैं। तो well, let's take a 2-minute break. Okay, let's take a 2-minute break and then we'll continue the stream. Okay, so go get a glass of water. Okay, we have been streaming for a very long time, I think, almost. Yeah, so हम थोड़ा सा break लेते हैं 2 मिनट का, and then we will continue with this portion, operators and or
Okay, we are back. Okay, so we'll continue the workshop, of course. Okay, operators के बारे में बात करते हैं. We have and, or and not. Boolean logic जो होती है उसको हम follow करते हैं. तो Boolean logic basically let's talk about and क्या होता है. Let's say आपके पास दो variables हैं अलग अलग, A और B. तो उसमें ये होता है and logic में होता है कि अगर दोनों true होंगे तो आपका output भी true होगा. तो ये चीज़ होती है, आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद पाइथन. हम तो आमतौर पे एंड लॉजिक हम इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इस्तेमाल करते हैं, मैथमेटिक्स में भी इस्तेमाल करते हैं, एंड इन कोर्स इन प्रोग्रामिंग इट इज़ वेरी हेल्पफुल, क्योंकि हम जब रूल्स सेट करते हैं तो इस तरह से हम कंडीशन सेट करते हैं. तो या लेट्स ट्राई दिस आउट. ठीक है, तो वी कैन से let's just say कि no, okay. Right. So I have to show you guys one thing first. Basically variables के साथ हम बना सकते हैं boolean. bool एक variable वो होता है, data type होता है, which can be true या false. Okay? तो आप variable को set कर सकते हैं true and false. मैं कहूँ a is equal to true, a is equal to true, b is equal to false. तो अगर मैं कहूँ c equals to a and b, तो क्या होगा? ठीक है, a is true मतलब कि हम वापस आते हैं, a is true लेकिन b is false. तो हमारा आंसर होगा, सॉरी ये गलत है, सॉरी ये false होना चाहिए, false होगा. Let me just change this, false होगा. Okay, and in this case what we'll do is कि it c जो होगा वो भी overall false होगा. So let's print this, let's see what happens. C is false, right? Because of course दोनों जो है, अगर एक भी वेरिएबल फॉल्स होगा एंड, तो जब आप एंड लॉजिक इस्तेमाल करते हैं when you write and, तो दोनों ओवरऑल फॉल्स ही होगा. अगर मैं लिखूँ ट्रू ट्रू तो ये ट्रू होगा. दिस इज द ओनली केस, ओनली सिनेरियो है एंड का जब ये मतलब ट्रू होता है. अगर और लॉजिक इस्तेमाल करने, वेट होल्ड ऑन, sorry about that, XOR logic बता रहा था, which we are not covering. ठीक है, तो अगर और आपके पास है, लाइक अगर एक वेरिएबल ट्रू होगा, then the output will be true as well. So let's go back to this. If I make this false, a true है, b false है, और अगर c का करेक्ट मतलब c is equal to a or b. ठीक है, क्योंकि हम और लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं then लॉजिक गेट, तो यू हैव ट्रू. ठीक है, अगर a फॉल्स होता और b ट्रू होता तो आंसर क्या होगा? ठीक है, अगर a फॉल्स है और b ट्रू है, मतलब a फॉल्स है और b ट्रू है, तो ये ट्रू होगा. इसको हम चलाएंगे तो c भी ट्रू है. अगर दोनों फॉल्स होंगे तो क्या होगा? दोनों फॉल्स, सी भी फॉल्स होगा. ये और लॉजिक होता है. फिर तीसरा होता है नॉट लॉजिक. नॉट लॉजिक होता है कि व्हाटएवर यू हैव, व्हाटएवर आपके पास भूल है, मतलब फॉल्स है या ट्रू है, उसका ऑपोजिट होगा. ठीक है, तो अगर मैं कह दूँ ए है, ए इज इक्वल टू नॉट ए. नॉट ए है मतलब ए इज फॉल्स. अगर नॉट ए करूँ तो नॉट फॉल्स बिकम्स ट्रू, सी बिकम्स ट्रू. अगर let's say b को करते हैं, b is true. ठीक है, अगर मैं कहूँ c equals to e is equal to not b, b is true, right? Not true, then it becomes false. So this is how you use the not gate, not logic. Let's try this with numbers. अगर मैं बनाती हूँ statement, 3 is bigger than 4, 10 is equal to 10. ठीक है, now in this case, you know, this is false, of course. 3 is not bigger than 4, or this, you know, this is true because 10 is equal to 10 is a true statement. अगर मैं यहाँ पे कह दूँ a and b, ठीक है, मतलब false and true. false and true क्या होगा?
एंड अगर लॉजिक इस्तेमाल करें तो अगर एक भी फॉल्स होगा तो वो भी ओवरऑल सारा कुछ फॉल्स हो जाएगा, तो सी को फॉल्स होना चाहिए, तो ये सी फॉल्स आ जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहती और ए और बी मतलब फॉल्स और ट्रू, अगर और लॉजिक में होता है अगर एक भी ट्रू हुआ तो सारे ट्रू हो जाते हैं, तो ये ट्रू हो जाता है स्टेट, ठीक है। बट देन ऑफ कोर्स यू कैन आल्सो डू अनदर थिंग, अगर मैं लिखूँ नॉट ए एंड बी, नॉट ए क्योंकि ए फॉल्स है और उसको मैं नॉट फॉल्स कह रही हूँ, मतलब आई एम सेइंग इट्स ट्रू, एंड क्योंकि बी इज ट्रू तो क्या स्टेटमेंट मतलब ट्रू इज लाइक नॉट फॉल्स and true becomes true and true becomes true, right? तो आपका C ओवरऑल बनेगा true। तो इस तरह से हम लाइक रूल्स सेट करते हैं बेसिकली, एंड ऑफ कोर्स इट डजंट हैव टू बी जस्ट नंबर्स, इट कैन बी मतलब स्ट्रिंग्स भी हो सकती हैं, मुल्तान इज इक्वल टू मुल्तान, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू ही रहेगी, राइट। अगर मैं उसको प्रिंट करूँगी तभी भी ट्रू आपके पास स्टेटमेंट आएगी। तो दिस इज़ हाउ वी सेट रूल्स हम करते हैं। समटाइम्स बेसिक रोबोटिक्स में मैं एग्जांपल देती हूँ, रोबोटिक्स में क्या होता है कि आपके पास सेंसर है तो वो चेक करते रहता है कि यार मेरे सामने कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं प्रेजेंट है, तो द एंटायर टाइम वो चेक करता रहेगा कोड के वेदर नॉट इफ ऑब्जेक्ट इज विद इन 10 सेंटीमीटर्स, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो वो कुछ काम करता है। तो इस तरह से हम मतलब एंड और लॉजिक इस्तेमाल करते हैं टू मेक रूल्स, टू मेक स्टेटमेंट्स, टू मेक कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जो कि आगे जाके हम समझेंगे। या एंड ऑफ कोर्स दिस लास्ट ऑपरेटर जो हमारे पास रहता है वो होता है इज नॉट, इज के ऑपरेटर, इज एंड नॉट के ऑपरेटर, मतलब आइडेंटिटी ऑपरेटर। अगर मैं कह दूँ यहाँ पे सेम थिंग करते हैं, यहाँ पे मुल्ट्रॉनिका से लिखते थे, मुल्ट्रॉनिका सोल्यूशन, ठीक है, एंड वी गेट रिड ऑफ दिस एंड वी गेट रिड ऑफ द एंटायर स्टेटमेंट, ठीक है। तो आई से इफ ए इज बी, now you and I both know okay of course like this is not true, this string is not the same as this string, ठीक है, a और b are not the same। तो अगर मैं ये सेंटेंस is b, ठीक है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाता है। अगर मैं लिखूँ a is not b, ठीक है, तो ये ट्रू हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो अनदर मेथड दैट वी यूज टू सेट रूल्स, टू सेट कंडीशंस, ये बहुत हेल्पफुल होता है। So that brings us to, of course, जो मैंने important मैं बोला था शुरू में कि important aspect of programming, of all programming languages, is कि हमारे पास ability होती है if else statements बनाने की, conditional statements बनाने की। तो let's talk about an example. Example हम discuss करते हैं so that you can understand what we mean by if else conditions. Basically idea ये है कि अगर आपके पास एक condition है वो मैच हो रही है, ठीक है, तो फिर आप एक कंडीशन प्रेजेंट है तो फिर आप एक एक्शन लेंगे, ठीक है। तो लेट्स से फॉर इंस्टेंस आप कह रहे हैं इफ इट इज़ रेनिंग देन कैरी एन अम्ब्रेला, ठीक है। अगर बारिश होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर बारिश हो रही है, दिस थिंग इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट बिकम्स ट्रू, देन मैं उस वक्त ये एक्शन होगी, ठीक है। तो दिस पोर्शन हैज़ टू बी ट्रू फॉर मी टू डू दिस एक्शन, then I'll carry an umbrella, okay। So again, yeah, this is the condition, and of course this is the action। अच्छा, अब हर आपके तो एक रूल बन गया ना, लेट्स से कि इसकी एक्सेप्शन होनी चाहिए कि लेट्स से कि अगर बारिश नहीं हो रही तो फिर क्या करना चाहिए। तो हम कहते हैं एल्स, मतलब एल्स मीन्स कि इफ लाइक इसके कम्प्लीटली ऑपोजिट, अदरवाइज विल डू दिस, ठीक है। इफ इट इज़ रेनिंग आई विल टेक एन अम्ब्रेला, अदरवाइज आई वोंट कैरी वन, ठीक है, अदरवाइज मैं ये एक्शन लूँगी। तो इस तरह से हम सेट करते हैं। तो या लेट्स ट्राई दिस आउट, ठीक है। पहले एक सिंपल सा वो करते हैं। तो लेट मी से यही हम एग्जांपल फॉलो करते हैं। ए एंड बी हमारे पास वेरिएबल्स हैं, तो मैं अगर कहूँ इफ ए
हम ये एक्शन कर रहे हैं, प्रिंट डबल कोट्स एंड बी आर द सेम, राइट। और अदरवाइज ठीक है, मतलब अगर ये जो है ये रूल की एक्सेप्शन है, रूल का ऑपोजिट है समझ लें, अदरवाइज सिनेरियो क्या करेंगे, क्या एक्शन लेंगे, हम कहेंगे मैं प्रिंट करूँगी ए एंड बी आर नॉट द सेम, ठीक है। let's run this, let's see what happens, ठीक है। ये प्रिंट करता है ए एंड बी आर नॉट द सेम, व्हाई इज दैट, बिकॉज यहाँ पे ये रूल को चेक करता है, रूल कहते हैं, तो कंडीशन कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई ना, क्योंकि ये फॉल्स है तो इट विल नॉट इम्प्लीमेंट, जो भी अंदर इसके इफ स्टेटमेंट के अंदर जो चीज़ है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, ओनली इफ ट्रू, ठीक है। इम्प्लीमेंटेड इफ कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है। इस तरह से हम करते हैं। तो हम कह सकते हैं एक और भी हम करते हैं, दिसंबर टेम्परेचर 11 डिग्रीज करते हैं, ठीक है। हम ये करते हैं पहले इफ ए इज इक्वल टू दिसंबर, ठीक है, कंपैरिजन हम ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, ए इज इक्वल टू दिसंबर, मतलब मैं चेक करेंगे कि अगर ये दिसंबर का महीना है एंड ये बिल्कुल, और स्नो इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ बूल इस्तेमाल कर रहे हैं, हम करेंगे प्रिंट करेंगे इट इज विंटर, राइट, ठीक है। But before I continue, let me go back to this and talk about another thing. If else के बारे में बात करें, तो let's just say कि आपके पास sometimes ये होता है कि सिर्फ आपके दो कंडीशन तो नहीं है, right? The world is not black and white. Sometimes you have all shades of grey in between. So let's just say कि एक और कंडीशन है कि मतलब कि रेन है, प्लेजेंट वेदर है, व्हाट इफ यू हैव टू मच, बहुत ज़्यादा सनी है, स्कॉचिंग हीट हो रही है आपके पास, दैट इज द थर्ड केस सिनेरियो। उसको क्या करना चाहिए, वी से एल्स इफ इट इज़ टू सनी देन कैरी अ सनस्क्रीन। दिस इज माय थर्ड कंडीशन, एक और मैं कंडीशन सेट करी हूँ कि अगर ये है तो फिर मैं ये करूँगी, ठीक है। तो यू कैन ऑलवेज सेट मोर देन वन कंडीशन। तो आप इस तरह करते हैं, एलिफ लिखते हैं टू सेट अनदर कंडीशन, ठीक है। तो let me just write condition number 2 and snowing, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से लिखती हूँ ये चीज़ कि a इज इक्वल टू दिसंबर, चेक करिए, and temperature is less than 20, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे print it is winter, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि स्नो हो रहा है, ठीक है। else मैं लिखूंगी print it is not winter, ठीक है। तो मेरे पास कितने स्टेटमेंट्स होंगे, बेसिकली मैं 3 सिनेरियोज को मैं डिस्क्राइब करूँगी। सिनेरियो 1, ठीक है, कंडीशन 1, सिनेरियो 1, कंडीशन नंबर 2, सिनेरियो नंबर 2, और देन ऑफ कोर्स सिनेरियो नंबर 3 है। तो यहाँ पे कंडीशन ही आप सेट करते हैं, बस आप ये कह रहे हैं कि अदरवाइज ये होगा। तो पहला जो हमारा कंडीशन था वो ये था कि
अगर दिसंबर है स्नो हो रही है देन ऑफ कोर्स यू हैव टू यू कैन अस्यूम 100% आपको पता है कि विंटर भी है एंड इट्स स्नोइंग, ठीक है। अगर स्नो वाली कंडीशन ट्रू है तो आप कह सकते हैं इट इज़ विंटर एंड इट इज़ स्नोइंग, ठीक है। सेकेंड सिनेरियो ये है कि अगर स्नो नहीं हो रही लेकिन दिसंबर का महीना है लेकिन टेम्परेचर फिर भी कम है तो यू कैन से कि खाली विंटर, इट इज़ विंटर, ठीक है। अदरवाइज सिनेरियो ये हो सकता है हम कह सकते हैं मतलब कि दिसंबर भी है और ठंडक भी नहीं है, तो यू कैन अस्यूम कि इट्स नॉट विंटर, ठीक है। इस तरह से आप कहते हैं सिंपल मैं लिख रही हूँ। ऑफकोर्स दिसंबर विंटर में और भी महीने होते हैं बट वैसे मैं सिंपल फॉर दिस एग्जाम्पल मैं इस तरह से दिखा रही हूँ। तो हमने सेट किए थे वेरिएबल्स, हमने कहा दिसंबर, टेम्परेचर 11 है और स्नो फॉल्स है, ठीक है। हमारे जिस इलाके में हम स्नो नहीं हो रही, तो अभी क्या आ रहा है इशू, मुझे कह रहा है कि दिसंबर, हाँ दिसंबर इट सेज इट इज़ विंटर स्नोइंग। तो यहाँ पे मुझे एक बेसिकली बग है, राइट। आई एम सेइंग दैट मेक्स नो सेंस बिकॉज स्नो तो वो है और मेरे पास स्नो फॉल्स है एंड इज गिविंग मी दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट, दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। तो मैं चेंज कर दूँगी एंड टू एंड। बेसिकली क्या होगा कि आई एम सेइंग आई एम सेटिंग अ हार्ड रूल कि अगर दिसंबर है और स्नो नहीं, अगर स्नो हो रही है तो ओनली देन आई विल प्रिंट इट इज़ विंटर स्नोइंग। अदरवाइज अगर मैं दूसरा फिर कंडीशन चेक, अगर मैं कहती हूँ अगर दिसंबर का महीना है और टेम्परेचर मतलब ये अस्यूम बेसिकली क्या होता है कि अगर ये कंडीशन स्नो वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर हम अस्यूम करते हैं बाकी वाली कंडीशंस को कंसिडर करते हैं। तो क्योंकि हमारी स्नो वाली कंडीशन ट्रू नहीं थी इसलिए हम उसको एलिमिनेट करते हैं, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो हम दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि अगर क्या दिसंबर है और टेम्परेचर भी कम है तो फिर हम कहेंगे हाँ ये विंटर है, ठीक है। अदरवाइज इट इज़ नॉट विंटर, ठीक है। तो इस तरह से हम मतलब सेट कैसे रूल्स, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट लाइक अ परफेक्ट रूल्स का मैं सेटअप नहीं किया हुआ। लेट्स लुक एट अनदर मोर ज़्यादा अच्छी से एग्जांपल देखते हैं। तो एज बंदे की हो सकती है 29, ठीक है। मिनिमम एज इज 18, ठीक है। और पाकिस्तान में होता है कि पार्लियामेंटेरियन बनने के लिए यू हैव टू बी अराउंड मिनिमम, अगर पार्ल अंडरस्कोर एज, यू हैव टू बी मिनिमम 25 एज, ठीक है। तो हम चेक करेंगे वेदर और नॉट समवन कैन बिकम अ पार्लियामेंट का मेंबर if age is bigger than adults and part age is bigger than parliamentary age, तो हम कहेंगे प्रिंट करेंगे you can become a member of parliament, ठीक है। ठीक है, अगर दूसरा हम कंडीशन नंबर 2 सेट करते हैं एलिफ के साथ, अगर एज आपकी अडल्ट है एंड अगर आपकी एज अडल्ट है देन यू आर जस्ट से यू कैन वोट। यहाँ पे भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड वोट, ऑफ कोर्स दोनों आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे है कि ऑफ कोर्स अगर आपकी ये वाली कंडीशन फेल हो गई, मतलब फॉल्स हो गया, जब पार्लियामेंट एज 25 से आप कम उम्र के हैं तो ऑफ कोर्स ये कंडीशन फेल हो जाएगी, तो आप कंडीशन नंबर 2 को कंसिडर करेंगे। तो उसमें वो चेक करता है कि अगर एटलीस्ट आप अडल्ट तो है ना, राइट, आप अडल्ट हैं तो यू कैन वोट। अदरवाइज अगर ये भी आप कंडीशन फेल हो जाती है, मतलब एडल्टहुड की एज से भी ज़्यादा से कम है, देन यू जस्ट राइट you are not eligible to vote, ठीक है। तो बंदे समझे, लाइक बंदे ने ये इनपुट कर दिया, you know what I'll do is, बल्कि I'll make this into a user input, integer bracket input, डबल कोट्स में लिखेंगे what is your age, ठीक है। इस तरह करते हैं, let's run this, it asks for my age, let's say I'm 40 years old, तो मुझे बताएगा कि यू कैन बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड वोट। लेट्स रन दिस अगेन। अगर मुझे कहता है कि व्हाट इज़ योर एज और मैं कह दूँ 21, तो इट सेज यू कैन वोट, ठीक है। मतलब आई कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पहली वाली कंडीशन तो मैं फेल हो गई, सेकंड कंडीशन एटलीस्ट मैं मैच कर रही हूँ, सेकंड वाली रूल में मैच हो रही है, ट्रू हो रही है। दैट्स व्हाई वी से कि ये पॉसिबिलिटी है।
Of course, you can run many मतलब if and if statements. You can have hundreds of else if else statements. ठीक है, लिमिट नहीं है पाइथन में. But this is just to show you कि क्या किस तरह से हम rules set करते हैं. This. So let's talk about. Yeah. So let's talk about lists. ठीक है. List किस तरह बनाते हैं. अभी हमने we had seen integers, we had seen strings, we had seen floats, we had seen bool. एक और तरीका होता है of storing data. ठीक है, वो होता है list. Basically, as the name suggests, आप multiple items एक list में डाल सकते हैं. तो better कि आप बजाय कि आप हर चीज़ के लिए एक एक अलग अलग वेरिएबल बनाएं, why not make a list. ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं. और ऑफ कोर्स इट डजंट हैव टू बी कि खाली मतलब एक टाइप ऑफ आइटम्स नहीं हो. आप नंबर्स स्ट्रिंग्स दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं स्ट्रिंग इसके अंदर, लिस्ट के अंदर. तो लेट मी शो यू किस तरह से बनाते हैं लिस्ट. लिस्ट वन चलो कर देते हैं. ठीक है, एंड आई मेक अ लिस्ट. उसके अंदर मैं कहती हूँ लिस्ट ऑफ सिटीज़, मुल्तान, लाहौर, सियालकोट, बिहारी. ठीक है, राइट. So I have four cities की मेरी लिस्ट हो गई. ठीक है, if I print this is what will happen. इसको प्रिंट करते हैं, क्या होता है पूरा लिस्ट प्रिंट आउट कर देता है और इसी फॉर्मेट में प्रिंट करता है विद द स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड ऑल. तो जब लिस्ट बना रही हो मेक श्योर यू हैव स्क्वायर ब्रैकेट्स और आप हर आइटम के बाद एक कॉमा डालना ज़रूरी है. दैट्स हाउ यू मेक अ लिस्ट. ठीक है, एंड इस तरह से आप लिस्ट के इंडिविजुअल आइटम को सिलेक्ट भी कर सकते हैं. हमने जैसे किया था इंडेक्सिंग हमने की थी. अगर मैं 0 लिखूँ तो मुझे पहला आइटम लिस्ट का वो मुझे मिल जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं. ऑफ कोर्स आप लास्ट आइटम भी ले सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स हम ये भी कर सकते हैं, एक और चीज़ भी कर सकते हैं. वी कैन रिमूव स्टफ. ठीक है, अगर मैं कह दूँ आई वांट टू रिमूव लाहौर फ्रॉम दिस लिस्ट. ठीक है, नो ऑफेंस टू लाहौरीज, मैं वैसे ही एग्जांपल के लिए दिखा रही हूँ कि यू कैन रिमूव स्टफ. ठीक है, सॉरी. तो या सॉरी दिस थिंग विल नॉट रिटर्न एनीथिंग. ठीक है, पहले आप इस तरह से आप अलग से आप करेंगे लिस्ट वन डॉट रिमूव, फिर बाद में प्रिंट कर लें लिस्ट. फिर क्या होता है, देन यू सी मेरा लिस्ट नजर आती है विदाउट लाहौर. इस तरह से आइटम्स आप रिमूव कर सकते हैं, आइटम्स को ऐड भी कर सकते हैं. लेट मी शो यू गाइस हाउ टू ऐड. ठीक है, अपेंड करते हैं इसको, अपेंड डॉट अपेंड. मे बी वी कैन इंक्लूड बावलपुर. ठीक है, लेट्स इंक्लूड दिस एंड यू हैव 5 सिटीज. ठीक है, आपको आखिर बिल्कुल आखिर में आपका आ गया बावलपुर. तो इस तरह से लिस्ट को आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं. तो ये एक you know it's another way of with storing data. This is very useful, of course, in computer vision, in machine learning, and of course many other things. Okay, yeah. So इस तरह से हम लिस्ट कम कर लिया cover. Let me just, there's many other things we can do with this, but I'll move on. ठीक है, I hope we just get the just basic gist आपको आ गई हो. एक हम mention स्टडी करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पाइथन, फॉर लूप्स एंड व्हाइल लूप्स के बारे में. तो इस तरह हम बेसिकली क्या होता है, समटाइम्स यू वांट कि अपने एक ख़ास पीस ऑफ कोड है, यू वांट टू रन इट एक्स नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है, तो बजाय कि आप इंडिविजुअली समझे मैं 6 दफ़ा कोई चीज़ करना चाहती हूँ, प्रिंट करना चाहती हूँ, बजाय कि मैं वो प्रिंट स्टेटमेंट 6 दफ़ा कॉपी पेस्ट करूँ, इट मेक सेंस कि मैं एक लूप बनाऊँ जो कि 6 दफ़ा उस कोड को रन करवाए. ठीक है, इस तरह से मेरा कोड जो होता है ईजियर टू रीड हो जाता है. तो फॉर लूप बनाने का जो सिंटैक्स है वो ये है, बेसिकली राइट फॉर, फिर आप एक नया वेरिएबल बनाते हैं जो कि पहले यूज़ नहीं हुआ, इन रेंज 6. तो अब ये बता रहे हैं रेंज मतलब फ्रॉम 0 to 6. ठीक है, मतलब फॉर 6 टाइम्स आई फॉर 7 टाइम्स आई बी प्रिंटिंग दिस थिंग. जो भी नीचे चीज़ फॉर लूप के अंदर चीज़ है वो सारी इंप्लीमेंट होगी, जितनी भी लाइनें होंगी. ठीक है, तो ये हर लूप में x की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी अंटिल इट रीचेस 6. पहली दफ़ा करेंगे तो 0 होगा, दूसरी दफ़ा होगा तो 1 होगा, इस तरह से. तो लेट मी पहले मैं दिखा देती हूँ सो दैट मेक्स सेंस. इस तरह होता है.
वी हैव फॉर लूप फॉर एक्स इन रेंज 6, ठीक है। एंड यहाँ पे हम करते हैं प्रिंट एक्स, इसको रन करते हैं तो यू कैन सी, सॉरी आई वाज गलत में गए थे, 7 टाइम्स इज 6 टाइम्स, तो 0 1 2 3 4 5 से 5, और ये 0 से स्टार्ट होता है क्योंकि ऑफ कोर्स कंप्यूटर्स दे टेंड टू स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। तो 6 टाइम्स इसने वही कोड को इम्प्लीमेंट किया, तो उसके बाद भी आप और चीज़ें डाल सकते हैं। तो वन थिंग आई गॉट टू मेंशन, आई शुड हैव पॉइंटेड इट आउट, इफ एल्स के दौरान बेसिकली जब आप फॉर लूप बनाते हैं या इफ लूप बनाते हैं, इफ एल्स करते हैं, तो आपने हमेशा टैब बटन दबाया, तो आई एम प्रेसिंग द टैब की, तो ओनली देन इट विल रन। वरना अगर मैं ऐसा करूँगी ये मुझे एरर थ्रो करेगा, वो कहेगा यार आपने ये मेरा फॉर लूप बट यू हैवंट इंडेंटेड इट, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर मैं फॉर इंस्टेंस अगर मैं लिखूँ इफ 12 इज बिगर देन 5 और मैं ऐसे वही मिस्टेक कर दूँ यहाँ पे प्रिंट 2, तो वही मुझे एरर देगा कि यू हैव नॉट इंडेंटेड इट, ठीक है। तो इस तरह से आपने ख्याल करना होता है, इंडेंटेशन हमेशा डालते हैं। दिस इज़ वन वे ऑफ शोइंग कि किस तरह से फॉर लूप आपके अंदर करता है। फॉर इंस्टेंस आप चाहते हैं कि यू नो लाइक इंस्टेड ऑफ कि 0 से स्टार्ट हो, लेट्स से कि 2 से लेकर 6 तक जाए, तो 2 to 5 अगर मैं रेंज 2 to 5 करूँ तो यू कैन सी कि सिर्फ 2 3 4 5 इसने प्रिंट किया, ठीक है। दैट्स ऑल्सो अनदर मेथड। अब मैं ये करती हूँ, ये हमारी लिस्ट थी पुरानी वाली, अगर मैं कहूँ मैं चाहती हूँ कि इसको हम आइट्रेट करें तो किस तरह होगा। तो वी हैव अ फ्यू मेथड्स। एक है कि लेट्स से यू हैव अ लिस्ट, राइट, तो व्हाट यू कैन से इज कि फॉर आइटम आप लिस्ट, खाली लिस्ट का नाम दे दें फॉर लूप में, और इसे कि फॉर एक्स इन आइटम, फॉर एक्स इन लिस्ट, वो एक एक उसको करते कंसिडर करता है, एक एक जो आइटम है लिस्ट को अंदर उसको कंसिडर करता है। तो लेट मी शो यू, ये 4 आइटम्स है ना, कहते हैं फॉर एक्स इन लिस्ट 1, तो क्या होगा कि पहली लूप में x विल बी इक्वल टू दिस, सेकंड लूप में x विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इस तरह से इसकी x की वैल्यू बदलती जा रही है फॉर ईच लूप, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है। दूसरा भी तरीका ये होता है, आप लिस्ट की लेंथ निकालें और फिर रेंज वाला यूज़ करें, रेंज ही यूज़ करें, बट बेसिकली क्या होता है, जैसे लेंथ इसकी 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखें रेंज 4, तो कहते हैं 4 टाइम्स रन करो तो 0 1 2 3 वही पुरानी चीज़ करता है। लेकिन व्हाट इफ मैं चाहती हूँ यार लिस्ट की हर आइटम इंडिविजुअली नज़र आए, तो आई से लिस्ट 1 x, ठीक है, इंडेक्सिंग हम कर रहे हैं, एंड सेम थिंग हैपन्स कि मेरे x बिगिनिंग में x इज पॉइंटिंग एट 0, तो आई कैन से 0 वाली पोजीशन में जो है चीज़ वो निकालो। सेकंड लूप में 1 हो गया x, ठीक है, तो सेकंड वन, तो इसलिए मैं लाहौर प्रिंट कर रही हूँ, सियालकोट प्रिंट कर, बिहारी प्रिंट कर रही हूँ। तो दैट्स ऑल्सो अनदर मेथड ऑफ लूपिंग थ्रू एन एंटायर लिस्ट, ठीक है। तो ये हम करते हैं। तो बेसिकली समटाइम्स आप ये कह सकते हैं कि नहीं मैंने फर्स्ट आइटम नहीं करनी, आई वांट टू ओनली कंसिडर फर्स्ट टू लास्ट आइटम, तो यहाँ पे मैंने मुल्तान को नहीं कंसिडर करी, लाहौर सियालकोट बिहारी को मैं कंसिडर करी। तो इस तरह से you can like loop through a list and you can also choose to select कि सारा लिस्ट में नहीं कवर करना, few items को मैंने select करने हैं। तो this is how you use while loops। फिर आ गया हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है which is while loop, ठीक है। while loop किस तरह आप यूज़ करते हैं, तो while loop is what happens is कि basically until a condition remains true, वो चीज़ को जो भी कोड होगा while loop के अंदर वो उसको इम्प्लीमेंट करते रहेगा कंटिन्यूसली, ठीक है। द मिनट वो जो कंडीशन आपने रखी हुई यहाँ पे कंडीशन होती है, ये जो कंडीशन है, मिनट इट बिकम्स फॉल्स, ये इट विल ब्रेक आउट ऑफ द लूप, लूप बंद हो जाएगी, while loop खत्म हो जाएगी। तो लेट्स प्रिंट दिस, लेट्स ट्राई दिस आउट, ठीक है। सिंपल सा है, सो कोड मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ क्या हो रहा है इस कोड, ठीक है। वही सेम चीज़ आपने इंडेंट करना है। तो इनिशियल मेरा एक वेरिएबल है जिसका नंबर है, आई वैल्यू है 10, ठीक है। तो मैंने वाइल की जो कंडीशन रखी है ये है कि वाइल नंबर इज वेरिएबल, नंबर जो है नंबर वेरिएबल जो है इट रिमेन्स
पॉजिटिव, मतलब इट रिमेन्स अबव 0, हम ये जो भी है लाइन्स हैं हम उनको इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, ठीक है। तो अब प्रिंट करेगा 10, ठीक है। सेकेंड लूप में क्या होगा, प्रिंट करेगा 9, क्यों? क्योंकि थर्ड लाइन नंबर 33 में हम नंबर को डिक्रीज करते जा रहे हैं, डिक्रीमेंट करते जा रहे हैं, एंड दैट्स वाई इफ आई रन दिस यू विल सी दिस थिंग हैपनिंग 10 to 1, ठीक है। तो जब लूप यहाँ पे पहले जब वैल्यू थी नंबर की 1 माइनस 1 बिकम 0, तो जब मैं वापस यहाँ पे आती हूँ वाइल लूप पे, नंबर इज इक्वल टू 0, 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, दैट्स वाई आई ब्रेक आउट ऑफ द लूप और मेरा कोड बंद हो जाता है। तो ये तरीका होता है। अगर मैं 100 देखूँ, ठीक है, तो ये कोड 100 टाइम्स चलेगा, ठीक है। यू कैन सी एंटायर थिंग पूरा 100 टाइम्स चला है कोड। तो दैट्स हाउ मतलब कंडीशन आप सेट करते हैं। लेट्स से अगर आप चाहते हैं कि ये वाइल लूप इन्फिनिटली चलता रहे, ठीक है, तो बेसिकली यू कैन जस्ट डू दिस, ठीक है। बी केयरफुल अबाउट दिस, ओके, जो मैं करने वाली हूँ। अगर आपने कंप्यूटर को रोकना हो जस्ट प्रेस Ctrl C, ठीक है। तो ये करता रहे, चलता जा रहा है forever, ठीक है। तो ये इन्फिनिट लूप था। तो व्हाट हैपेंड इज मैंने ऐसी कंडीशन रखी जो कि हमेशा ही ट्रू रहेगी, तो सीधा डायरेक्टली मैंने ट्रू ही लिख दिया, एंड दैट्स व्हाई इट वाज प्रिंटिंग कंटिन्यूसली, ठीक है। तो ये हो गया वाइल लूप। तो वी आर प्रिटी मतलब ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो गए हमारे स्ट्रीम को। तो व्हाट वी विल डू नेक्स्ट इज वी विल एक्चुअली डू आवर एग्जाम्पल, और हम करेंगे अपना कैलकुलेटर ऐप बनाएंगे। तो कैलकुलेटर ऐप में हमारा मेन प्लान है, हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स यूज़ करेंगे और प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, एंड ऑफ कोर्स यूज़र इनपुट लेंगे। तो हमारा प्लान ये है, यूज़र जो है हमें 2 नंबर्स देता है, फिर हमें बताता है, तीसरा हमें इनपुट देता है, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन करनी है, मतलब कि चाहे उसने डिवीजन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, एक्सपोनेंट निकालना हो, ठीक है, विल डू इट फॉर हिम। तो हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स करते हैं, वो चेक करते हैं, ओके इस यूज़र इनपुट ने कहा है कि क्या हमें एडिशन करने को कहा है, तो वो चेक करता है, ओके एडिशन करना है, दैन हम दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे। अगर उसने कहा कि नहीं डिवाइड करना है, तो विल चेक, अच्छा जिसने डिवीजन का कहा है तो हम डिवाइड कर देंगे। तो या एंड ऑफ कोर्स अगर यूज़र ने हमें कोई बहुत वियर्ड इनपुट दे दिया, मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए ही गिव अस अ रॉन्ग सिंबल, ठीक है, तो उसका हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें केटर करना है। समटाइम्स ऑफ कोर्स यूजर्स मेक मिस्टेक एंड यू नो ह्यूमन बीइंग्स नॉट परफेक्ट, तो आपने ख्याल करना होता है। तो लेट्स मेक लेट्स erase this। तो वही जो चीज़ की थी, सबसे पहले तो मुझे चाहिए, आई विल टेक टू नंबर्स के इनपुट लूँगी फ्रॉम माई यूजर्स। ऐसे लेट्स से नंबर ए, नंबर वन इंटीजर नहीं बल्कि फ्लोट, क्योंकि रिमेंबर जो आपको इनपुट आती है यूजिंग द इनपुट फंक्शन, ये वाली जो है, इसके साथ आपको स्ट्रिंग आता है, तो आपने कन्वर्ट करना है टू एन एक्चुअल फ्लोट। तो मैं फ्लोट में इसलिए करी हूँ क्योंकि हो सकता है कि हमें डेसिमल पॉइंट्स में कोई नंबर दे, ठीक है। तो राइट आई से इंसर्ट नंबर 1, नहीं सॉरी इंसर्ट द फर्स्ट नंबर, this is the first number, सेमीकोलन स्पेस डालें, it looks nice। इसी को कॉपी करते हैं, राइट, एंड आई राइट यहाँ पे सेकंड नंबर, हम फिर सब कहेंगे सेकंड नंबर आप मुझे दें, लेकिन आप इसको दूसरे वेरिएबल में स्टोर करेंगे, नंबर टू में हम स्टोर करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 2 वेरिएबल्स हो जाएंगे जिनके साथ हमने मैनिपुलेशन करनी है, अरिथमेटिक करनी है। लेट मी राइट दिस, सिंपल कैलकुलेटर ऐप। देन एज अ सेड मैंने कहा था कि ये कहेगा, हम इसको कहेंगे कि आप अरिथमेटिक, ये फॉलोइंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं, एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंट, मॉड्यूलस को छोड़ देते हैं, वी डोंट नीड मॉड्यूलस, राइट, एक्सपोनेंट का करते हैं, एवरीथिंग इज ओके। फिर हम इनपुट लेंगे कौन सा अरिथमेटिक, तो आई जस्ट कॉल इट ऊपर OPER, ठीक है।
इन दिस केस आपको कन्वर्ट नहीं करना होगा टू अ फ्लोट, बिकॉज ऑफ कोर्स आप स्ट्रिंग चेक करेंगे, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग चेक करेंगे. तो विल जस्ट राइट इनपुट ऑपरेशन सेमीकोलन स्पेस. ठीक है, नाउ विल डू वन थिंग. तो यहाँ पे हम करेंगे ओके विल चेक. सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि वेदर और नॉट हमारा जो भी हमने बनाया है, जो भी हमारे पास ऑपरेशन हमें दी गई है, सिंबल जो दिया है, वेदर नॉट इट्स वैलिड और नॉट. तो हम क्या करते हैं, इसको हमारे पास एक लिस्ट होगी ऑफ वैलिड ऑपरेशंस. ठीक है, लिस्ट, और इसमें हम मेंशन करेंगे सबसे पहले प्लस माइनस. ठीक है, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन एंड ऑफ कोर्स एक्सपोनेंट. ठीक है, तो हम इसके अगेंस्ट चेक करेंगे वेदर नॉट जो हमें यूज़र ने इनपुट दिया है ऑपरेशन का, इज़ इट इन दिस लिस्ट. तो हम कहेंगे इज़ इन, सॉरी, इफ ऑपरेशन इन लिस्ट ऊपर. ठीक है, अभी हम खाली ट्रू और फॉल्स कर देंगे. मैं कुछ चीज़ अभी हम कुछ सब्ट्रैक्शन कैलकुलेशन भी नहीं करेंगे. राइट नाउ आई जस्ट वांट टू शो यू हाउ दिस पर्टिकुलर कोड रन्स, हाउ इट, मैं दिखाया था किस तरह से ये चेक करता है हमारा कोड उसी के हमें यूज़र ने वैलिड इनपुट दिया या नहीं. ठीक है, तो पहले उसको नंबर दे देते हैं, रैंडम में नंबर दे रही हूँ. ठीक है, अब मुझे कह रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस ये हैं फॉलोइंग. अगर मैं इसको कह दूँ प्लस साइन दूँ तो ये ट्रू दे रहा है क्योंकि ऑफ कोर्स दिस इज़ वैलिड. अगर मैं इसको कह दूँ लेट्स डू इट अगेन. ठीक है, एक्सपोनेंट का करते हैं, डबल एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट को मैं देती हूँ ट्रू. लेट्स रन दिस अगेन. अगर मैं इसको इस दफ़ा गलत सिंबल देती हूँ, लेट्स से मैं इसको देती हूँ एक्सक्लेमेशन, 2 एक्सक्लेमेशन पॉइंट दे देती हूँ. ठीक है, इट डू नॉट प्रिंट ट्रू, मतलब कि ये जो ऑपरेशन थी ये वैलिड नहीं थी. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक एल्स स्टेटमेंट डालते हैं जो कि हमें यूजर को बताएगा नॉट ए वैलिड ऑपरेटर. ठीक है, ऑफ कोर्स अगर वैलिड ऑपरेटर नहीं है तो हम कैलकुलेशंस नहीं कर सकते. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐसे जस्ट फॉर फन कैलकुलेटिंग. ठीक है, कैलकुलेट. ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपर हम चेक करते हैं. लेट्स से कि हाँ ये एडिशन करेगा. इफ फर्स्टली वी हैव टू चेक कि कौन सा, अभी लिस्ट के अंदर तो नाउ वी हैव टू चेक कि कौन सी अब ऑपरेशन करनी है. तो हम कहेंगे इफ ऑपर इज इक्वल टू प्लस, तो ये कहेगा प्रिंट एडिशन. ठीक है, इसको ये कहेगा. इस तरह से हम एक और बनाती हूँ, दूसरे एल्स इफ हम बनाएंगे क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं. ठीक है, प्रिंट सब्ट्रैक्शन. तो ये हमारे पास अभी फिलहाल सारे मैंने भी कोड किए. राइट नाउ आई एम ओनली कोडेड फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो लेट्स से नंबर्स में दे दी हूँ, इसको नंबर्स देती हूँ. देन नाउ आई गिव इट प्लस साइन, एडिशन में करनी है. तो कैलकुलेटिंग आ गया, मतलब जब बता रहे वैलिड हो गया. तो यहाँ पे आता है एडिशन, मतलब कि सॉरी एडिशन होता है, एडिशन करना है मुझे. ठीक है, तो अभी मैं ये कर सकती हूँ. राइट नाउ व्हाट विल डू इज़ कि हम कहेंगे आउटपुट इज़, और याद है हमने वो किया था फॉर्मेट कर्ली ब्रैकेट्स वाला चीज़ हम किया था फॉर्मेटिंग के साथ. हम ये करेंगे फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट हम करेंगे एंड आई राइट what was it, num1 plus num2. Will this work? Let's see. Okay, 10 will be 10 plus 25. Okay, so I get 35.0. ठीक है, so this means this is correctly working. ठीक है, सेम चीज़ हम सब्ट्रैक्शन के साथ करेंगे. मैं इसको कॉपी कर लूँगी इसी लाइन को एंड आई राइट, इंडेंटेशन थोड़ी सी ख़राब हो गई, नो वरीज. यहाँ पे क्या करें, num1 माइनस num2. तो आई एम अस्यूमिंग कि जो भी यूज़र हमें नंबर दे रहा है वो सीक्वेंस में वो ये चाहेगा कि नंबर 1 माइनस नंबर 2. मे बी आई माइट बी रॉन्ग. ठीक है,
पर इन दिस केस क्योंकि सिंपल कैलकुलेटर ऐप है तो हम इस तरह से इसको करेंगे. नाउ आई विल जस्ट कॉपी दिस एंटायर थिंग और यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन का. ठीक है, तो इस टेकिंग मल्टीप्लिकेशन सिंपल है, ठीक है, बल्कि हम यहाँ पे लिखते जाते हैं एडिशन. ठीक है, सो इट्स ईजियर फॉर अस टू कीप ट्रैक कहाँ पे हमने गलतियाँ की हैं, कौन सी यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है. दिस इज मल्टीप्लिकेशन एंड ऑफ कोर्स हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको नंबर 1 टाइम्स नंबर 2. लेट्स रन दिस, लेट्स सी दिस. अब मैं नंबर देती हूँ मे बी 10 2. मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हम करते हैं 20, राइट. सो दिस इज नाउ वर्किंग करेक्टली. सो मुझे इनपुट दिया है. Now we are left with no, we're not left with, we have 2 more to do. Division हमने करनी है, division. और यहाँ पे ऑपरेंड ऑपरेटर कौन सा डालेंगे, डिविजन वाला, तो /. तो सेम थिंग यहाँ पे भी मैं // मुझे डालना होगा. तो we'll try it out, चेक करते हैं. So I give it 35 नंबर देती हूँ, सेकंड नंबर 7 दे देते हैं. तो अगर मैं डिविजन करी हूँ तो आंसर होना चाहिए 5. 5.0, दिस इज करेक्ट. ठीक है, करेक्ट वैल्यू है यहाँ पे, करेक्ट वैल्यू आएगा. एंड देन वी लेफ्ट विद लास्ट वाला रह गया. लास्ट वाला क्या था, एक्सपोनेंट. वी वांट टू फाइंड द एक्सपोनेंट. तो यहाँ पे मैं एक्सपोनेंट लिखती हूँ एंड वी राइट **. And finally, I think we're almost done. ठीक है, maybe I'll write 2 to the power of 4. ठीक है, 2 to the power of 4 क्या मतलब 4 times 4 मतलब 16 होना चाहिए इसको. So let's do this. 16. This is correct. ठीक है, हमारा कैलकुलेटर वर्क कर रहा है. And I think we're done with all of the arithmetic operations. ये हमारा इस तरह से काम होता है if it is in the list. तो इस तरह से हम हमारा कैलकुलेटर ऐप सिंपल सा है. ओनली 27 लाइन्स, मे बी लेस, इनके स्पेसेस में डालती हैं. दिस इज हाउ यू मेक अ सिंपल ऐप. और इस तरह से और भी आप ऐप्स बना सकते हैं. तो लेट मी जस्ट ट्राई इट आउट अनदर टाइम. कोई मुश्किल से हम नंबर लेते हैं 200 टाइम्स समथिंग लाइक दैट, रैंडम नंबर. ठीक है, एंड व्हाट विल डू इज यू विल डू मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, लेट्स ट्राई दिस. I don't know if it's true or not. Let's Google के साथ हम डबल चेक करते हैं. It was 200 times, इसमें कौन सा नंबर था, ये वाला. तो कॉपी करती हूँ. This is the number. So let me just double check. 28886. I assume this is correct. Okay. So we know at least कि हमारा जो ये है simple calculator app is working correctly. Let's try another thing. Exponent हम करते हैं. Exponent maybe 19 4. ठीक है, 19 to the power 4 क्या होगा. Let's try this. One three zero three two one. This is correct. So yeah, clearly हमारा simple जो calculator app हमने बनाया है is working properly. So this is how you make a calculator app. You know, actually we didn't check one more. We didn't check division. एक और दफ़ा check कर लेते हैं. 20 divided by 7 division कर. ठीक है, तो this is what I guess. Okay, division भी correctly चल रहा है. तो again, okay, we have finally made a simple calculator app. और ये अच्छा सा बन गया. So yeah, we've covered a lot of things today. ठीक है, इस वर्कशॉप में काफ़ी चीज़ें कवर की हैं. From variables, data types, string manipulation, list को किस तरह manipulate करना है, if else conditions, arithmetic operators, logical operators, identity operators, उनके साथ में हम rules किस तरह बनाते हैं. Yeah, so we did quite, of course, for loops बनाए. For loops को use किया with range के साथ, या for loop को हम list के ऊपर किस तरह iterate करते हैं, while loops किस तरह हम करते हैं, use करते हैं. All of these things, I hope you understand basic fundamentals हमने cover किए हैं Python की, जो कि important चीज़ें थी. And finally हमारा जो example project था basic calculator app बनाने का, वो भी हमने बनाया and we went through all of it line by line.
this is, I hope you understood, you learned quite a bit from this particular session. और अभी मैं क्या करती हूँ, like because we are done, let me wait for a few more minutes. कोई सवाल जवाब हो आपके पास? Right, let's see if we have any particular people जो कि कुछ सवाल पूछना चाहते हैं. So yeah, so again, of course you can do a lot more stuff with this with Python. For instance, आप you can calculate factorials. Mathematics के अंदर जो factorials हम करते हैं कि अगर आपने लिखा 5 exclamation mark, ठीक है, let's go to Google. 5 अगर exclamation mark लिखूँ तो it figures out the factorial. तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं with Python के साथ बना सकते हैं. I have this code already, मैंने बनाया हुआ factorial के साथ, सिंपल सा कोड होता है. तो I would encourage you guys कि मतलब बगैर इस कोड को कॉपी किए हुए पहले ट्राई करें find the factorials कि किस तरह से factorials calculate करते हैं in Python, and then of course then you can code it out. तो इस तरह से मैंने तो at least in my case yeah, if spoiler alert, if you don't want to know then you can pause the stream, but मैं तो उसे explain कर देती factorials का. Basically you have to use combinations आपको इस्तेमाल करने होते हैं यहाँ पे. कुछ कोड्स में if else कंडीशंस आपने सेट करनी होती है, कुछ के साथ आपने while लूप्स भी इकट्ठा करना होता है या for लूप भी यूज़ कर सकते हैं. तो इन दिस केस जो भी उनको सीखा है, you might have to mix and match all of these things together. तो इस तरह से अभी आप मतलब ज़्यादा हायर लेवल स्टफ बना सकते हैं विद पाइथन. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें करने को मिलती हैं. मतलब आप और भी मैथ की चीज़ें बना सकते हैं, पाइथागोरस फंक्शन बना सकते हैं, स्क्वायर रूट ढूंढने का फंक्शन बना सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज ढूंढने के फंक्शन बना सकते हैं. Anyway, anything is possible with Python. It's really interesting and really fun to learn, and I hope you had a great time learning during this workshop. And yeah, so of course this within 1 to 2 days ये जो workshop होगा, it will be available on our live stream. अगर आप वापस प्रोसेस को चेक करना चाहें, देखना चाहें to learn stuff, and of course stay tuned to our channel क्योंकि और भी live sessions होंगी